being one in the crowd does not make you an athlete. Getting six pack abs and a good physique does not make you a coach. आजकल एथलीट्स बहुत ज़्यादा फॉरेन कोचेस हायर कर रहे हैं. The most basic diet you follow, the best conditioning that you get on stage. एक्सपेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग का जो कीड़ा काटा है ना, वो काटा ही गरीबों को है. आपकी बॉडी के अंदर आप कितना ही महंगा स्टेरॉइड डालो, का डाइट बराबर नहीं है और आपकी नींद बराबर नहीं है, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी. Bodybuilding is one of the most expensive mentally physically challenged sport in the world. ऐसा स्पोर्ट जहां आपको 24/7 365 डेज एक मॉन्क की तरह जीना है, जहां एक एथलीट अपनी सोशल लाइफ, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स सब कुछ सेक्रीफाइस करता है. यू हैव टू बी 100% टू एक्चुअली बी एट द टॉप. और ये सारी चीज़ें जैसे डाइट हो गया, वर्कआउट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, स्लीप हो गई, ये एथलीट अकेले नहीं संभाल सकता. देयर शुड बी एन अपर हैंड. And that's when the role of a contest prep coach comes into play. 2026, the game of bodybuilding, the amount of muscle mass, the level of conditioning इतनी बढ़ गई है कि एक एथलीट की पूरी लाइफ एक प्रेप कोच के हाथ में होती है. One mistake and the entire game is over. So today at our interview series of Redefined Fitness, I'm gonna invite one such prep coach and उनका सिर्फ मतलब उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है, क्योंकि सब लोग इन्हें जानते हैं. अगर मुझे नहीं जानते हो तो पॉडकास्ट मत देखना. सो ऑलमोस्ट सब इन्हें जानते हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ हाई-फाई फिटनेस. Ampus Nutrition, Ampus Nutrition, Dyson Pharma, and also Happy Hours. Happy Hours, और सर नहीं फिलहाल and Team Humble Beast. Team Humble Beast. So we are gonna welcome इकबाल सैयद सर. Thank you. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द जर्नी. सर, हमारे इंडस्ट्री में हम रेयरली किसी बॉडी बिल्डर, कॉन्टेस्ट प्रेप कोच को देखते हैं दिस हाईली एजुकेटेड. सो सबसे पहले मुझे आपकी इंजीनियरिंग, अर्ली लाइफ ऑफ इंजीनियरिंग एंड जर्नी विद रिलायंस जाननी है. देखिए, आपने दो सवाल एक साथ पूछ डाला कि हाँ. हाउ डू वी सी एन एथलीट या एंड अ बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट प्रेप कोच. एट द सेम टाइम आपने उसी में एक सवाल पूछा कि मेरी जर्नी कैसे रही. तो मैं इनिशियली आई बिलोंग टू अ वेरी कॉर्पोरेट साइड ऑफ प्रोफेशन. आई वाज वर्किंग विद रिलायंस मुंबई मेट्रो एंड बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं 15 साल से रिलायंस के साथ में जुड़ा हुआ था और अभी 2 महीना पहले मैंने रिजाइन किया है. ओके. So I've left my job. Now I'm 100% into fitness as a profession. Okay. So I had completed my engineering with MBA in construction management, and I worked with Reliance for 15 years. I grew from an assistant manager's position to the general manager position in 15 years. And parallelly, I drew my passion into fitness, Okay. which year on year grew higher and higher, and it had become a parallel profession for me. राइट. So it was not just के भाई free time में मैं कर रहा हूँ. In fact, I was removing time from my busy schedule and I was managing bodybuilding with my corporate job at the same time. In fact, I started competing after completing my engineering. When I started working with Reliance, my first competition that I took part in was in 2014 or 15. I don't remember exactly. It was already, I had joined my job. And coming to your another part of the question, how do we see someone as an athlete or as a coach? In today's time, what I see is हर वो बंदा जिसके सिक्स पैक एब्स आ गए हैं, राइट, वो अपने आप को कोच समझता है. और हर वो बंदा जो स्टेज पे एक बार भी चढ़कर उतर गया है, वो अपने आप को एथलीट समझता है. बराबर. तो being one in the crowd does not make you an athlete. Getting six pack abs and a good physique does not make you a coach. बराबर सर. A coach job is to transform not just physique but the lives as well. राइट. So it has to be a complete package. You don't just transform someone physically. You have to mentally या make them grow. You have to give them education, give them knowledge. At the same time, you have to transform their physique. राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में अब हम जो डिजिटल एज से गुजर रहे हैं, आज की डेट में अपने आप को कोच बोलना इज नॉट अ बिग फ्लेक्स. राइट सर, ये बराबर है. हाँ, you go to any chat GPT, Perplexity, Gemini, etc., etc., etc. There are hundreds of such websites where you feed your data, you put some good prompt, and you get a very well designed, not just diet, but the anabolic cycle as well.
हाँ ये ठीक भी है? हाँ तो writing a diet protocol for someone is not coaching at all. It is something that the computer can do. understood ठीक है? So the real coaching comes into picture where there is human intervention. बराबर Chat GPT, all these AI softwares and applications, they do not know what you're going through mentally, internally, right etc., etc., etc. On a very generic level, these applications will write a diet for you. Now, the real coaching comes into picture where a coach actually diagnoses the issues, corrects them, right which these softwares cannot. you know The second most important part of a coach is in your prep, the peak week. बराबर सर Peak week where an athlete steps onto the stage can never be theoretical. In fact, for an example, if I'm following a particular protocol for this year for some competition for the peak week, this protocol may or may not be valid for me itself for the next year. next year right तो एक एथलीट का खुद का पीक वीक का प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है कि सेम काम करेगा हर साल या हर प्रेप पर. तो एक एथलीट का पीक वीक दूसरे एथलीट पे नहीं चलता है. बराबर तो वहां पर एक कोच का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है. तो एक कोच की पहली जिम्मेदारी है एथलीट को सेफ रखना. बराबर डाइट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. आज जिम हाँ में अगर आपके जिम में 500 लोग आते हैं तो उसमें 50 लोग डाइट लिख के दे देंगे एक दूसरे बराबर है को. सर ये तो आपने सही अगर बात किसी को डाइट लिख के दिया है, I have experienced this. I have written a protocol for someone that bugger has just removed his name, put another 10 names on the sheet, Oh. and shared the same protocol with 10 other people. Understanding the fact, the anabolics that we use has an anabolic number and an androgenic number attached to it. बराबर So the moment you use some compounds, it creates an anabolic environment inside your body. right So now it is just how you eat, what you eat, how much you eat. So if he has given that protocol to 10 people, I'm sure out of those 10, 6 will have results. हाँ And the social media works on all goodies. बराबर है They'll never talk about failures, bad things, sad things. So now this chap will forget those 4 people who have not got the results. बराबर और जो 6 लोगों का रिजल्ट आया है वो सोशल मीडिया पे चला जाएगा एंड ही विल बिकम अ कोच. हाँ ये बहुत सही आज की डेट में ऐसे भी कोचेस हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन का स्पेलिंग नहीं आता है, बोल्डिनॉन का स्पेलिंग नहीं आता है, उनको हाफ लाइफ साइकिल नहीं पता है. और आई एम रियली सॉरी टू से दिस, देयर आर मेनी IFBB प्रो कार्ड होल्डर्स जिनको साइकिल लिखना नहीं आता है और वो लोग लोगों को प्रेप कर रहे क्या हैं. बोल रहे हो हाँ, तो विनिंग अ कंपटीशन आल्सो डज नॉट मेक यू अ कोच. राइट Now, this is a very, very strong statement that I'm quoting here on your podcast. शो जीतना आपको कोच नहीं बनाता है. हाँ आप जीत गए आपकी मेहनत के वजह से, आपकी जेनेटिक्स के वजह से, आपने बहुत एफर्ट्स डाला, आपने अपना डाइट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सारा फिजिकल था. इल्म हासिल करना और अपने जिस्म को उभारना, ये दोनों में बहुत फर्क है. बहुत फर्क सो ट्रांसफॉर्मिंग योर फिजिक डज योर ओन फिजिक डज नॉट मेक यू अ कोच. बराबर है सर तो मैं एक कोच को ऐसे देखता हूं कि ही हैज एन एफ्लुएंट नॉलेज अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन अदर्स, व्हाट इज मेकिंग अदर्स यूज. right And at the same time, if something happens, he has good knowledge to correct it. And results speak. results speak right क्योंकि मैंने भी काफ़ी कोचेस के साथ काम ट्रेन किया कोचेस के अंडर. लाइक आई हैड अ कोच ही यूज्ड टू मॉनिटर मी एवरी सेकंड. लाइक मेरा अगर मूड स्विंग्स हो रहा है ड्यूरिंग प्रेप तो हर एक चीज़ वो बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है सर. हाँ. नहीं तो आजकल मैंने देखा है कि सब कुछ दे देते, ये नहीं चला, वो चला, वो नहीं चला, ये चला. दे एक्चुअली रूइंड द फिजिक्स. आज की डेट में आप किसी का भी प्रोटोकॉल उठाकर देखिए, इट्स अ चैलेंज. कोई भी एथलीट, भले ही वो बिगिनर ही क्यों ना हो, मतलब अब बिगनर को आप एथलीट नहीं बोलोगे, ही इज जस्ट एंटरिंग इनटू द फील्ड. आप उसका प्रोटोकॉल उठा के देखिए, उसमें सिंगल कंपाउंड नहीं होगा. राइट हाँ ये नहीं होगा, नहीं होगा है बिल्कुल ना. एंड एनी एनाबॉलिक साइकिल विदाउट टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ साइकिल. राइट So one testosterone will always be there. It could be testosterone enanthate, it could be testosterone propionate or cypionate or any combination. So one testosterone is always there for sure. बराबर. अब इसके साथ में और 2-3 कंपाउंड्स ऐड कर दिए जाएंगे और साइकिल लिख के दे दिया जाएगा. अब ना उस बंदे को पता है रिजल्ट किस वजह से आ रहा है, ना उस कोच को पता है किस वजह से आ रहा है. तो बॉडी में अगर कोई चीज जाती है तो रिजल्ट आना ही है. अब रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो वो बंदे ने डाइट ईमानदारी से नहीं किया या वर्कआउट ईमानदारी से नहीं किया. तो
आज की डेट में साइकिल लिखने वालों को भी नहीं पता है कि साइकिल क्यों लिखी जा रही है. राइट, और इतने सारे कंपाउंड होते हैं वो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई काम देना कौन क्या सा है, कर रहा है, देना क्या है, कॉपी पेस्ट है. कॉपी पेस्ट हो गया. अब सर मुझे ये पूछना है, 9 to 5 जॉब जैसे आप बोले आपने आप एक इंजीनियर थे, सो उसके साथ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस अनकन्वेंशनल करियर पाथ? सी द वेरी फर्स्ट थिंग इज, पहले तो मुझे इस फील्ड में ही इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा. व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, हम्म. it was a passion which was forced upon me. ओके. Yeah, matlab an activity which was forced upon me. I wouldn't say passion then. मेरे free time में my dad used to force me to go to gym. ओके, So when I was doing my engineering, हम्म. so when I completed my engineering, I saw results. I continued working out, but still it was not on a professional level as an athlete as such. Uh, when I started visiting expos, started meeting people, then I realized this field is too vast Yeah. and I haven't explored anything yet. And that was the time I didn't even have a coach, to be very honest. Okay. For the first year of my professional career as a bodybuilder, I didn't have any coach. Okay. So my friend and my friend Sagar and I, we used to read books. We used to understand what is what. Okay. To be very honest, when I started going to gym, I didn't even know protein की calories कितनी होती है और carbs की कितनी होती है. उस जमाने में Google, कुछ नहीं social था. media awareness इतना ज़्यादा नहीं था. So we had to read everything from the scratch. I started writing some diet for me, then doing it on my own, seeing results. Right. So for a year, I did some sort of gaining, some sort of cutting down my weight. My interest grew in it. And then eventually I started reading about steroids. Yeah. See, a coach is must. I बराबर. will tell you. But what had happened back then, I didn't have any coach, but what helped me was my engineering background. Right. इंजीनियर बेचारा इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, पूरी जिंदगी उसको सिर्फ किताबें ही पढ़ना और पढ़नी है. असाइनमेंट. हाँ. तो that one thing from engineering helped me in terms of reading books. I still read books. Right. I have ensured every day at least for 1 hour I'll read something or the other. Right. But I will read something. So that reading helped me, stick myself to bodybuilding, anabolics, and nutrition books. And for another 1 year, nobody would believe, 15 years ago, I ran first cycle on myself without a coach. अरे बाप रे. And I'm blessed. Okay. I'm really blessed. I'm saying this on this platform because when I did my first cycle on my own, I had zero knowledge about anti-estrogen or gynecomastia, etc., etc. So when I completed my first cycle, I had never used anti-estrogen. अब पता ही नहीं था. तो गलतियां होती है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप प्रेप कर रहे हो तो आपको एक कोच की जरूरत है. और वो कोच ऐसा होना चाहिए जिसको सब कुछ पता है. मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि मैंने सारे साइकिल यूज कर लिए, 1 साल तक साइकिल पे रहा और मुझे एंटी-एस्ट्रोजन के बारे में इल्म नहीं था. बट दिस इज 15-16 years old story. Then I got much deeper and deeper and deeper into anabolics and nutrition and bodybuilding. Then I started working with coaches. My first coach was Rakesh Udiyar. So I've worked with Rakesh Udiyar. I've worked with Milos. I've worked with Patrick Tour. My last prep was with Patrick Tour. And over a period of time, I've coached many athletes. I don't have the exact number at the moment. If I tell you 1,000, people will just make fun of me ke 1,000 kaun train karta hai. But if I would say in the last 15 years, I have trained more than 1,000 people combined. From bodybuilding, who are doing competitive bodybuilding, who are just transforming using anabolics, and general lifestyle people. सो सर जैसे मैंने सुना कि आपने राकेश उदियार सर के साथ ट्रेनिंग की थी एंड ऑल्सो मिलोस साकर. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन कोच एंड यूएस कोच? आजकल एथलीट्स बहुत ज़्यादा फॉरेन कोचेस हायर कर रहे हैं. देखिए, मैंने बहुत सारे कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस के साथ में, भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो या एक पूरे प्रेप के लिए हो, मैंने काम किया है. So I've worked with Dennis James as well. So he had written one of my diet protocol in 2017. I've worked with Milos. I've worked with Patrick Tour. तो अगर आप ये देखोगे, the number of anabolic compounds that are produced and are made available in the industry,
वो नंबर फिक्स्ड है, अच्छा, वो okay, नंबर फिक्स्ड है. fixed है. Suppose if you read 10 books on bodybuilding, हाँ, anabolics हाँ. specifically, and you enlist all the anabolic compounds that are available, it would हम्म, not cross more than 60. हाँ, right. So I've done my homework. I haven't seen more than 57, 58. I'm specifically talking about AAS, anabolic Androgenic androgenic steroids. steroids, हाँ, not SARMs, not peptides. तो अब अगर कोई कोच आपका इंडियन कोच हो हाँ, या कोई कोच आपका फॉरेन कोच हो, foreign coach. वो आपको इन्हीं कंपाउंड्स में से कोई कंपाउंड देगा और आप अपना बॉडी बिल्डिंग साइकिल करोगे. बराबर. सो हाँ, ओरल्स एंड इंजेक्टेबल्स विल कम फ्रॉम दिस लिस्ट. हाँ, इसके बराबर. अलावा और कोई है ही नहीं. है ही नहीं. अब बात करते हैं खाने की. हाँ, अगर आप प्रोटीन खा रहे हो हाँ. तो द सोर्सेज विल बी एग्स, हम्म, फिश, मटन, चिकन. chicken, इफ somebody is eating beef then beef, if somebody is eating pork then pork. pork. अब हाँ, वो उसकी मर्जी है, उसको जो खाना है खाए. खाना. हाँ. ठीक है. अगर वेजिटेरियन है तो द ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, पनीर, हम्म, सोया, टोफू, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम्म, नाउ गो टू कार्बोहाइड्रेट. हाँ, It is rice, white rice, brown rice, pasta, noodles, हाँ, then yams, sweet potatoes, हाँ, potatoes, बराबर. etc. etc. हाँ. इसके अलावा और कुछ नहीं. कुछ नहीं. Now oats, barley, हाँ, muesli. Now you go to fat, you have clarified butter, which is ghee, घी. हाँ, regular butter, हाँ. your olive oil, हम्म, macadamia nut oil, or any sort of oil. हम्म, So to get protein, carbs, and fat, the food sources are also limited. लिमिटेड. हाँ, बराबर. एक ठीक है. लिस्ट है, उस लिस्ट में से ही लेना है. हाँ, Now coming to the most basic fact, आपको खाना खाना है डाइट हाँ. करने के लिए. हाँ, सिर्फ कोचेस कहाँ पे खेल खेल जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए. दे विल राइट सम फैंसी डाइट फॉर यू. बराबर. हाँ. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, हम्म, द मोस्ट बेसिक डाइट यू फॉलो, हाँ, द बेस्ट रिजल्ट्स यू गेट. राइट. मोर यू टॉर्चर योरसेल्फ, हम्म, the best conditioning that you get on stage. हम्म, If you want to enjoy your diet, forget the conditioning. हाँ. If Right. you want to enjoy your food, forget bodybuilding. It is as simple as ये that. बराबर, ये बहुत सही बोला. तो इसके अलावा कुछ नहीं. अब इंडियन हम्म, कोचेस भी वही करते हैं, फॉरेन कोचेस भी वही करते हैं. हाँ, इंडियन एथलीट्स के लिए आई वुड लिटरली सल्यूट देम, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स एंड 90% प्लस इंडियन एथलीट्स, दे आर शोल्डरिंग हंड्रेड्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज apart from bodybuilding. हम्म, They're doing bodybuilding as a profession or as a passion, but at the same time they have to run their family, they have to do a 9 to 5 job. बराबर. ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी. When you go to foreign countries, there are athletes who are 100% sponsored. हाँ, राइट. They're not even taking care of their own family. हाँ, हाँ, So the moment you get into this environment, your stress level is gone. हाँ, बराबर. एक बहुत रैंडम डिस्कशन हुआ था आज से 3-4 साल पहले कि लोग O2 जाते हैं और कुछ महीनों में इतना सारा मसल गेन करके आते हैं. हाँ, बराबर. So my reply was, आप किसी एथलीट को मेरे पास लेकर आओ और वो अपनी फैमिली से दूर रहेगा, ना जॉब करेगा, ना बिजनेस करेगा, ना कोई कॉल्स अटेंड करेगा. वो रहेगा, हम उसको दिन में 5 टाइम 6 टाइम खाना देंगे, हम उसको वर्कआउट कराएंगे, हम उसको साइकिल देंगे. सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी. वो इंडिया में रहते हुए भी उतना गेन कर सकता है. कर सकते हैं. द होल गेम रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रेस. स्ट्रेस. जब आदमी घर से दूर हो जाता है तो उसके घर वाले उसको पूरा दिन फोन नहीं करेंगे. हाँ, राइट. अब अगर घर वाले कुछ प्रॉब्लम्स अगर फेस भी कर रहे हैं तो उसको सारी प्रॉब्लम्स 100% नहीं शेयर करेंगे, ये सोच करके वो घर से दूर है, उसको क्यों टेंशन दिया जाए. बराबर. And if somebody thinks I don't have any problem, but he's 100% involved in morning to evening activities, जो भी उसकी चल रही है, उसके घर वालों की चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जैसे ही आप रोजमर्रा जिंदगी के स्ट्रेस से बाहर आ जाते हो, आप कहीं पर भी रहकर ग्रो कर सकते हो. राइट. सो एनवायरमेंट मैटर्स वन. और फिर खाने का ऐसा है कि आप कितना क्वालिटी फूड खा रहे हो. बराबर. आपको चिकन 200 रुपए किलो से लेके, हमारे शहर में ही 200 रुपए किलो से लेके 600 रुपए किलो भी चिकन मिलता है. बराबर. So it is all up to you where you get your food from. So the only difference what I found between an Indian coach and international coaches, they're very concerned about your blood work. Oh, okay. उनके लिए health is always priority. यहाँ पे एक ट्रेंड है कि मैं क्यों 10,000 रुपए खर्च करूँ. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत ही फेमस एथलीट जो अभी बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है, आज से 1.5 साल पहले उसने मुझे अप्रोच किया प्रोटोकॉल के लिए.
Hmm. In fact, he started bodybuilding before me. Okay. When I asked him for blood work, he sent me some basic CBC, KFT, Okay. and I gave him a huge list. I asked them a list of blood work, मुझे ये सारे चाहिए. वो मुझे ये बोलता है कि bro, I'm a lazy ass. I don't want to get this blood work done. Let's start the protocol. Oh, A shit. senior athlete who's been on stage, who's training celebs, Hmm. he's saying कि I don't want to get the blood work done. Okay. So suppose if he's making lakhs of rupees and he's not ready for the blood work, so see what must be happening with the people who are not making money. Right. Because running a cycle would cost hardly 7,000-8,000 a month. You get 2 okay. to 3 compound, 2,000 rupees each. Hmm. But doing a blood work is like 8 to 10,000. Hmm. तो वो ये सोचता है मेरा 1 महीने का साइकिल निकल जाएगा. तो वो जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होना पड़ेगा या चेंज होना चेंज पड़ेगा होना पड़ेगा इंडिया में. क्योंकि सर अभी स्टेरॉइड्स में भी जब इंजेक्शन की बात है जो इंजेक्ट करना होता है लोग बोलते हैं 100 रुपये डॉक्टर को क्यों दूँ उससे अच्छा हाँ. मैं खुद डाल देता हूँ हाँ. वो भी हो रहा है इस पे वीडियो भी बनाई थी मैंने वीडियो निकाल दी मेरे इंस्टाग्राम आप खुद एक एथलीट हो एंड इट्स बीन 15 to 20 years of you being in the industry almost 2 decades you have observed the industry in and out so अभी के टाइम पे 2026 what is that one thing which is lacking in prep coaching in fitness industry even today ट्रांसपेरेंसी. right अगर आप एक वर्ड में मुझसे पूछोगे Okay. तो ट्रांसपेरेंसी Hmm. कोचेस की तरफ से, और एथलीट्स की तरफ से अगर आप एक चीज पूछोगे तो ऑनेस्टी. Hmm. Okay. Athletes are not honest and loyal to their coaches, and coaches are not transparent to their athletes. Reason being, हम जब इंजीनियरिंग करते थे तो हमको ये बताया जाता था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया. Right. लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है गांव हम्म. देहात से, रिमोट एरिया से लाके, Hmm. मतलब उनको दिन रात काम कराया जाता है. Hmm. कोई रूल्स नहीं है, चल रहा है. Hmm. बट जब मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि देयर इज अ वन पैरेलल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया व्हिच इज बॉडी बिल्डिंग. हाँ. There is no union, there is no association, there is no federation for gym owners, for trainers, Right. for athletes. Hmm. कुछ नहीं है. Secondly, इस इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा रोजगार दिया है, इतना ज्यादा रोजगार दिया है और हर किसी को दे रहा है. Hmm. सो इट इज अ वेरी बिग Industry. हाँ इंडस्ट्री, जहाँ पे हाउसकीपिंग से लेके, फ्रंट डेस्क सेल्स से लेके, मार्केटिंग से लेके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से लेके, हर कोई इस इंडस्ट्री में पैसे कमा रहा है. एंड ट्रेनर्स एंड कोचेस. अब इसमें ये हो गया है कि जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हो रहा है या सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है, इसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए. बराबर. ऐसे नहीं कि आज मेरा दिल बोला मैं कल ट्रेनर बन जाऊं, या फिर आपके पास में 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और फिर आप अपने आप को ट्रेनर बोलो. आज एक 12वीं पास लड़का 12वीं में फेल हो जाता है और कल उसको भूत जाग जाता है उसका कि मेरे को जिम में ट्रेनर बनना है. हाँ. और जो ये क्लासेस रन कर रहे हैं इनके पास में कोई कंडीशन नहीं है. 10वीं फेल है आ जाओ, 12वीं फेल है आ जाओ. देयर हैज टू बी सम कंडीशन. यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉलेज इफ यू हैवंट क्लियर्ड योर एसएससी एग्जाम. राइट. जब आप 10वीं पास करोगे तो ही आप कॉलेज जाओगे. जब आप ग्रेजुएशन क्लियर करोगे तो ही आप मास्टर्स करोगे. सो देयर आर सर्टेन लेवल्स व्हिच यू हैव टू क्लियर. तो आई अंडरस्टैंड, या तो एक बेसिक एप्टीट्यूड आईक्यू लेवल टेस्ट कराओ, राइट, उसके बाद ट्रेनर के कोर्स में लो. और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आप सिर्फ सर्टिफिकेट देने के लिए सर्टिफिकेट मत दो. बराबर. यू ग्रूम देम, यू टीच देम, यू डेवलप देयर ब्रेन, देयर माइंड, get them as an overall trainer. Don't just sell your certificate. अब उसमें ये होता है कि उसके पास नॉलेज है नहीं, बराबर, मगर उसको भी पैसा कमाना है. हर आदमी को पैसा कमाना है, हर आदमी को पैसा कमाना है. अब कोचिंग के अलावा, ट्रेनिंग के अलावा फिर वो क्या करेगा? माल बेचेगा, सप्लीमेंट्स बेचेगा. उसके अंदर पूरी इंडस्ट्री खराब हो गई है. जिनको नहीं यूज करना है वो उसको भी बेच देगा. बराबर. तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेनर्स के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए कि अब ये ट्रेनर बनेगा, या तो फिर उसने इतना टाइम दे दिया है कहीं पे फ्लोर पे, फील्ड में, और फिर वो अपने आप को ट्रेनर बोले या कोच बोले और लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चालू करे. बराबर. ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कि रैंडमली अगर किसी जनरल पॉपुलेशन को आजकल जिम में क्लेनेंट T3 सजेस्ट कर रहे हैं,
भाई वो ट्रेडमिल एटलीस्ट एक बॉडी बिल्डर से सहन कर सकता है जो जिटर्स वगैरह होते हैं क्लेन लेने से, पर एक आम आदमी नहीं कर से वो सकता। सीधा बॉडी को छोड़ देगा। तो जो मैंने आपसे कहा ना कि ट्रांसपेरेंसी बहुत मिसिंग है, वो रीजन है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जो आपको कंपाउंड देते वक्त जो भी कंपाउंड है उसके ऊपर के स्टिकर्स निकाल देते हैं, हाँ एंड दे गिव यू क्लीन बॉटल्स वायल्स हाँ एंड बॉटल्स हाँ एंड दे टेल यू इसके अंदर ये है। हाउ वुड यू ट्रस्ट समवन कि उसके अंदर वो है? बराबर See, running, injecting any compound inside your body is as good as risking your own life. राइट When it comes to your own life, mark my sentence, जब आपकी जिंदगी की बात आ जाए ना, तो अपने माँ बाप के अलावा किसी पे भी भरोसा ना करो। भरोसा मत करो। तो आप एक रैंडम, भले ही आपका उस कोच के ऊपर बहुत भरोसा है, बट वो ना आपकी माँ है ना वो आपका बाप है, तो आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो आपको एक ऑयल की शीशी देता है और वो बोलता है कि ये है, ये देखो यूज करना है, और आप बिना सवाल पूछे वो इंजेक्ट करते हो। दिस इज वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम लाइज। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। ये एक बीमारी है जो इस इंडस्ट्री को खोखला कर रही है। राइट, सो दिस शुड बी एक्चुअली यस, मतलब एथलीट्स ने ही यूज करना छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप एक जेन्युइन, एक प्रोफेशनल, एक एजुकेटेड कोच हो, तो आपका काम होना चाहिए कि एज लॉन्ग एज समबडी इज एसोसिएटेड विथ यू, यू टीच देम, यू एजुकेट देम. Suppose if I tell you 1, 2 and 3, these are the 3 compounds that we are using. I must tell you why we are using 3. Right. What these 3 compounds would do inside your body, and how long will we use it? What are the pros? What are the cons? Before I give you something, I must tell you what are the benefits and the side effects as well. Everything comes with side effects. अगर आप हेल्दी सैलेड भी हद से ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पानी में तो कोई बीमारी नहीं है, मगर आप पानी भी दिन के 20 लीटर पियोगे तो आप निकल लोगे। तो इवन इफ समथिंग इज हेल्दी एंड सेफ, इफ इट इज ओवरडोज्ड, इट बिकम्स हार्मफुल। तो इट इज अ कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देयर एथलीट्स व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग, हाउ लॉन्ग दे शुड बी डूइंग इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो पार्ट है ना, ये लैकिंग है। इन वन वर्ड, दिस इज ट्रांसपेरेंसी. And the only reason why majority of the coaches do not work on this particular point is they fear that they will lose business. Yeah, उनको लगता है कि ये सब कुछ सीख मैंने अगर बता दिया तो चला जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है, मतलब समथिंग ऑफ द डिस्कशन, अगर आपके नसीब में रिस्क लिखा है तो आप जमीन के 7 तबका नीचे भी चले जाओगे ना, तो आपको रिस्क मिलकर ही रहेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको हलाल तरीके से कमाते हो या हराम तरीके से कमाते हो। आपके नसीब में जितना लिखा है आप उतना कमाओगे, बट अब आप किसी को ठग रहे हो और कमा रहे हो, या किसी को एक्चुअली हेल्प कर रहे हो और कमा रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है। दिस विल टेक सम टाइम, बट गॉड नोज व्हेन। राइट, ये आपने बहुत ही सही चीज़ बोली। और सर मुझे अभी जानना है द राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर, लाइक खुद का कुछ होना चाहिए ऐसे। देखो, वो तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है खुद का कुछ होना चाहिए। हर आदमी जो जॉब पे जा रहा है वो ये सोचता है काश मेरा ही बिजनेस होता तो मैं जॉब नहीं करता। सो दिस इज वन साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग हैज। नाउ व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक बुक है टू सेल इज ह्यूमन बाय डैनियल एच पिंक, वेयर इट इज सेड दैट टू सेल it is our inborn feature. हाँ, ये बराबर। मतलब बेचना इंसान की फितरत है। बेचना भी तो एक किस्म का धंधा है। अब आप इसको एकदम इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसको बोलना नहीं आता है, बट उसको जब भूख लगती है तो वो अपनी माँ से दूध कैसे मांगता है? रोके। सो ही इज सेलिंग हिज इमोशंस। तो टू सेल इज ह्यूमन, मतलब बेचना इंसान की फितरत है। तो एनी बिजनेस वर्क्स ऑन सेल्स। जो बिजनेस में सेल्स नहीं है वहां पे क्या है, मतलब हर चीज बिक रही है ना। यहाँ अगर कोई बोले कि हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, तो तुम एजुकेशन भी तो बेच ही रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। इफ देयर इज नो मनी, इफ योर बिजनेस इज नॉट कमर्शियलाइज्ड, इट इज अ चैरिटी। ठीक है, तो हर इंसान की फितरत है, उसको धंधा करने आना है। अब सिर्फ फर्क यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस एक्यूमेन को डेवलप करेंगे। कितना स्ट्रांगली डेवलप करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा बिजनेस करेगा।
तो बिजनेस मेरा ऐसा था कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद रिलायंस आई ऑलवेज थॉट आई मस्ट हैव माय ओन जिम and this was not with an intention of doing a business as such. I had multiple gym memberships. I had gym membership in Foreign Fitness, जो अच्छा लोग 48 बोलते हैं. 48 I used to go to Reset on weekends. I had 2 memberships in Andheri East. okay Reason being, हर जिम में कोई ना कोई इक्विपमेंट ऐसा होता था जो मिसिंग है. मिसिंग है हाँ कुछ जिम के रूल्स ऐसे होते थे कि अगर आप सुबह कार्डियो शाम में वर्कआउट कर रहे हो तो आप सुबह कार्डियो करने नहीं आ सकते हाँ हो. आप राइट दिन में राइट 2 बार नहीं आओगे. फिर कुछ जिम में स्टीम के रूल्स हुआ करते थे हाँ कि आप इस पर्टिकुलर डे पर ही स्टीम ले सकते हो. राइट So back of the mind, I always had कि boss, as an athlete, I'm facing these many issues. Why can't I have my own gym? So I discussed it with my friend, and then we came up with an idea कि भाई हम हमारे ही एरिया में एक जिम खोलते हैं. And finally, we had a gym called i5 Fitness, and on this 16th of August, we are completing 8 successful years. ओह तो वहाँ से वो start हुआ. Then I entered into supplement business. Initially, I was into supplement trading business, but recently I've launched my own brand, a complete range of protein, aminos, creatine, pre-workout, etc., etc. In fact, Ampus Nutrition is the only brand in India where we are giving you ready-to-eat cream of barley. yeah So right cream of barley is a much better replacement for oats. Even a diabetic patient can have it because it has low glycemic index. Then I have my own gaming studio. I had a gym apparel brand, but I feel India doesn't have that trend where gym goers will wear some gym apparel brands while Right. working out, because majority of the people have a practice जो घर में कपड़ा जूना हो गया है हम वो प्लेन टी शर्ट को जिम में यूज करेंगे. So that apparel thing did not work in my favor. And I also had a fit meal company which we on our own tried to put it on hold for some time. Maybe in future we will start it again. ओके सो सर अगर मैं आपको पूछे जैसे आपने अम्पास न्यूट्रिशन की बात की या फिर आई की बात की व्हाट इज दैट वन थिंग विच सेपरेट्स आई एंड अम्पास फ्रॉम द रेस्ट तो कौन सी चीज़ रहेगी मेरा सबसे पहला बिलीफ ये है, you must work for your people and your people will take care of your business. Because it has to be win-win. राइट Suppose दो लोग हैं, अगर ये सोचता है कि मैं अकेला ऊपर जाऊं और इसको मैं नीचे ही रहने दूं, तो there is a hollow space being created. Suppose if he gets a jerk, he'll fall. राइट तो मेरा ये मानना है, हर वो आदमी जो आपसे जुड़ा हुआ है, अगर आप तरक्की कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि हर वो शख्स जो आपसे जुड़ा है वो भी तरक्की करना चाहिए. Then you are a good businessman, then you are a good entrepreneur, then you are a good human. You think of everyone. अगर मैं सोचूं कि मैं सिर्फ अकेला कामयाब हो जाऊं तो कामयाबी के मुकाम पे पहुंच के मैं अकेला हो जाऊंगा. लोगों का एक बहुत फेमस कहावत है, people at the peak of success they are always lonely. राइट अब फिर एग्जांपल्स देते हैं कि अमीरों की कार में 2 सीट होती है, बस में 60 सीट होती है. ये सब वाहियात बातें हैं. अगर आप आपका अखलाक, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर पोलाइट रखोगे, काइंड रखोगे, हम्बल रखोगे, तो जितने लोग आपके साथ आज है उतने लोग आपके साथ बाद में भी होंगे. राइट वो कामयाबी ही किस काम की जो आपको अकेला कर दे. अकेला कर दे तो मेरा ये मानना है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. एवरी पर्सन एसोसिएटेड विथ योर बिजनेस इज अ स्टेक होल्डर, वेदर ही इज अ हाउसकीपिंग गाय और माय जिम मेंबर और माय क्लाइंट और माय ट्रेनर or my sales executive or even if it is a social media guy who's managing my Instagram account for gym. So every single person is a stakeholder. वो हर it's not just 4-pillar business, it's a multi-pillar business. Any business is a multi-pillar business. एक भी पिलर हिलेगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे. सर तो सबसे सिंपल है, सबका ध्यान दो, सब मिलके आपका बिजनेस का ध्यान संभालेंगे. राइट नाउ सर 2026 जैसे बात करें, अभी हम डिस्कस करेंगे टीम हम्बल बीस्ट के बारे में. 2026 one thing for which you are known for, Iqbal Said is known for, is team humble beast. Honesty. So how did it started? Honesty. अगर मुझे लगता है आपको यूज करना है तो मैं आपको बोलूंगा आपको यूज करना है. हाँ. अगर मुझे लगता है कि किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो भले ही उससे मेरा फायदा होता हो, मैं आपको बोलूंगा नहीं है. ठीक है. अगर आप दिन का 1 किलो चिकन खा सकते हो तो मैं आपको दिन के 6 स्कूप प्रोटीन नहीं पिलाऊंगा.
जबकि प्रोटीन बेचना मेरा काम है। हाँ, right. अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा आया था मेरे पास, he was just 21 years old and he wanted to run a cycle. He was from Muhammad Ali Road. अच्छा, We got his blood work done and उसका testosterone level was 1240 naturally. without doing anything, no supplements, basic workout, घर का खाना, but he was a hardcore non-veg eater. 3 times a day he used to eat non-veg. Breakfast eggs, lunch mutton or beef, dinner mutton or beef. मतलब, अब उस बच्चे का टेस्टोस्टेरोन लेवल 1240 अगर है, हाँ, तो आप उसको क्या साइकिल रन करोगे? use ही नहीं है. So I folded my hand and I told him, boss, you just need good workout, good sleep, good diet. That's it. हाँ, अगर मैं उसको कंपाउंड्स देता तो उसमें मेरा फायदा होता, ये किसी भी कोच का होता या किसी भी ट्रेनर का होता, तो बेचना इंटेंशन नहीं होना चाहिए कोचिंग का. सो देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एज अ कोच Yeah. कि आप किसी को, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, अगर आप किसी को बेवकूफ बना रहे हो तो आप उसको इसी फील्ड में ला रहे हो. हाँ, ये बराबर है. मतलब आज आपने उसको बेवकूफ बनाया, हाँ. आपने उसको कुछ सामान बेचा, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचा, ठीक है, उसको आज नहीं पता है, बट वो इसी फील्ड में आने के लिए ट्रेन हो रहा है. आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा. सी एंड द फैक्ट इज द यूनिवर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ. जो पूरा कायनात का निजाम है ना, वो सच्चाई पे चल रहा है. भगवान ना झूठ बोलता है, ना भगवान को झूठ पसंद है. तो उसने जो पूरा यूनिवर्स, क्या बोलते हो आप, ब्रह्मांड की जो रचना रची है ना, वो सच्चाई पर है. सूरज ऐसे हिलते डुलते नहीं उगता है. एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड परफेक्टली, सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन ट्रुथ. तो जो झूठ है ना, वो कुछ वक्त के लिए छुपता है और जब फाइनल प्रोग्रामिंग होती है तो वो खुल जाता है. तो जिस बंदे को हम आज बेवकूफ बना रहे हैं, वो 2 साल बाद 3 साल बाद उसको पता चल जाएगा कि इसने मेरे को बेवकूफ बनाया है. सो यू हैव 2 लॉसेस. वन, यू लूज योर रिस्पेक्ट इन समवन्स आईज. सेकेंड, यू लूज योर प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर क्लाइंट्स. अगर आप इस बंदे को धोखा ना दो और इस बंदे में रिजल्ट्स ला कर दो, तो ये बंदा आपको फ्यूचर में 10 क्लाइंट देगा. तो पीपल आर ऑलवेज रनिंग एंड चेजिंग, रनिंग आफ्टर शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग कल्चर कि भाई जितना पैसा अभी आ गया, बट ऐसा नहीं होता है. राइट. इसलिए मैं देखता हूँ ना सर, जितने भी एथलीट्स हैं, जैसे सनी हो गए, इवन मनोज ट्रेन्स इन योर जिम, ये आपके साथ सालों से जुड़े हैं. मेरे पास ऐसे एथलीट्स हैं, जब मैंने पहला शो खेला था 2015 में, जो मेरे साथ उस वक्त से जुड़े थे, वो आज भी है. टू नेम अ फ्यू, जैसे शयान बोल के, इज अ वेरी फेवरेट क्लाइंट ऑफ माइन. ही इज नॉट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग एज सच, ही इज अ मॉडल, इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर आल्सो. तो ही इज एसोसिएटेड विद मी फ्रॉम लास्ट 2015. 11 साल हो गया है. 11 साल से कंटिन्यू कोई साइकिल रन भी नहीं करता है, बट जो एसोसिएशन है, सो आई फील प्राउड कि बॉस, देयर इज समथिंग इन मी. मेरे एथलीट्स मुझे नहीं छोड़ रहे. और बट इसका कॉन्ट्रडिक्टरी भी मैं एक चीज में बोलूंगा. इंडिया में एक ट्रेंड है कि लोग अपनी अंडरवेयर साल 2 साल बाद चेंज करेंगे, फटने तक उसको यूज करेंगे, मगर अपने कोचेस को हर 3-4 महीने में चेंज करेंगे, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. When you see any international professional bodybuilder, they will work with some coach for a good period of time, right? Because your coach also needs some time to understand your physique, body. how your body responds, what compounds will work on you. कभी कभार ऐसा होता है कि एक पीक भी देना पड़ता है, एक कॉन्टेस्ट प्रेप भी चला जाता है बॉडी को समझने के लिए. तो आप एक एथलीट के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने कोचेस के साथ में एटलीस्ट 2 साल, मिनिमम 2 साल 3 साल चिटक के काम करो. ऐसा ना कि 5 महीना इस कोच, ऐसे बहुत सारे जो मेरे पास से भी गुजरे, मुझको छोड़कर मुर्तुजा के पास, सिद्धांत के पास, फिर अतिंदर के पास, ऐसे बहुत लोग हैं. अच्छा. या उनको छोड़कर मेरे पास, मेरे को छोड़ के फिर किसी के पास. तो कुछ एथलीट्स होते हैं जो बहुत क्या बोलते हैं, भोरे की तरह इधर उधर होते रहते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. उनको ऐसा लगता है कि मुझे नया प्रोटोकॉल मिलेगा तो बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे. तो अब इसके ऊपर मैं ये बोलूंगा कि कोई रॉनी कॉलमैन नहीं बन जाएगा. आज की डेट में अगर मैं रॉनी कॉलमैन का प्रोटोकॉल लाकर भी दे दूं किसी को, तो जो जेनेटिक्स होती है ना, मराठी में एक बोलते हैं, उसकी काट ही वैसी है ना, तो दैट काट इज जेनेटिक्स. तो अगर उसके बॉडी में वो ग्रोथ है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर रॉनी कॉलमैन का साइकिल चला दो, घोड़ा एक पॉलिश्ड घोड़ा बन सकता है.
गधा घोड़ा नहीं बन बराबर। सकता ये बराबर है ना? हाँ तो आप कितनी भी मेहनत करो, एट द एंड देयर इज समथिंग दैट विल कम इनटू पिक्चर. राइट So it's a combination, it's a function of so many elements combined together. बराबर How you sleep, how much you sleep, how better is your sleep, how you eat, what you eat, how much you eat, how quality you eat, what compounds you're using, in what dose you're using, when you're using, how long you're using, how you're training, when you're training, how much you're training. At the same time, how is your body responding, how your organs are responding, how's your health, how's your genetics. And at the same time, who's the coach who's monitoring all these things. राइट तो लोग जो ऐसा तितर 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 इधर चल उधर रहे हैं, भटक हाँ। रहे हैं, वो गलत है. गलत है तो कोचेस को भी, हम्म, एथलीट्स को टाइम देना चाहिए. हम्म. नाउ अगेन अनदर कॉन्ट्राडिक्शन टू इट, हम्म, कोच को अपना बाप बना के लाइफ टाइम चिटक के भी नहीं बैठना चाहिए. ओके हाँ, नथिंग शुड बी डन आउट ऑफ इमोशंस, हम्म, नथिंग शुड बी डन आउट ऑफ ईगो. हम्म, ठीक है, देयर इज अ लव बिटवीन एन एथलीट एंड अ कोच, इट इज अप्रिशिएटेड. हम्म, ठीक है, बट सपोज इट्स बीन 4 years, इट्स बीन 5 years, 6 years, एंड यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस, तो भाई वो तुम्हारा बाप नहीं है राइट जो तुम चेंज नहीं कर सकते हो. कोच है. अपना रिलेशन अच्छा रखो, keep your communication good, maintain that rapport, maintain that relationship, respect him like a coach forever, because he's been your coach for some time. But change your coach, see what better you can do. Is there something that you're lacking here and can be compensated by joining some other person? तो इंडिया में ये भी एक मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ में कि भाई कोच को चेंज ही नहीं करना है, बस लगे पड़े. अब वो क्या होता है, कितना ही नॉलेजेबल कोच क्यों ना हो, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं हर किसी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, knowledge is so vast, you cannot have 100% of it. आपके पास कितना ही बड़ा वेसल क्यों ना आ जाए, आप पूरा अरेबिक ओशन उसके अंदर नहीं ले, अरेबियन सी उसके अंदर नहीं ले सकते हो, इंडियन ओशन उसके अंदर नहीं ले सकते हो. ठीक है, उसी तरीके से आप कितना ही कोच इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, उसके पास में 100% नॉलेज नहीं आएगा. तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि उसके पास में 100% बॉडी बिल्डिंग नॉलेज है, तो आई एम सेइंग दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, ही इज द बिगेस्ट चूतिया ऑफ दिस इंडस्ट्री. ओके या तो फिर वो शैतान है, इसलिए वो गलती कर रहा है, या तो वो इस गुमान में है कि उसको सब आता है, बट उसका गुमान जो है वो प्रूफ कर रहा है कि वो बेवकूफ है. ठीक है, तो वी ऑल हैव टू कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, अनलर्न, लर्न न्यू थिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस गुमान में कोचेस भी ना रहे कि मुझे हर चीज आती है, और एथलीट भी इस गुमान में ना रहे कि मेरे ही कोच को सब कुछ आता है, तो मैं क्यों चेंज करूं. हर किसी का अप्रोच थोड़ा अलग होता है, और क्या पता कोई नया अप्रोच आपके ऊपर काम कर जाए. नो कोच इज रॉन्ग. अगेन, और एक चीज मैं बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो जो कर रहा है वो गलत है. हर किसी का करने का तरीका अलग अलग है. जो मायने रखता है वो है रिजल्ट. आप स्टेज पे क्या रिजल्ट लाकर दे रहे हो एथलीट को, वो मायने रखता है. अब आप उसको ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो आपके ऊपर है. हाँ, बट इसके भी अंदर एक लूप होल है कि अगर कोई सही में ही बेवकूफ कोच है, तो एक बेवकूफ को बेवकूफ बोलना कोई गुनाह नहीं है. कॉलिंग अ चूतिया इज नॉट अ क्राइम. राइट ठीक है, तो देयर यू मस्ट ओपनली टेल पीपल व्हाट somebody is doing is wrong, so that you protect the next generation from getting fooled. राइट तो इंडस्ट्री में एक है कीबोर्ड वॉरियर बन के बैठे हैं, वो फिजूल का झगड़ा है. I don't see any podcast, I don't see any platform, I don't see any public discussion where people are talking productive, where people are talking something good, or something where improvements can be done for the industry. People are busy in pulling legs. कोई इन्फ्लुएंसर किसी ऑर्गेनाइजर के बारे में बोल रहा है, कोई एथलीट दूसरे एथलीट के बारे में बोल रहा है, कोई एथलीट किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहा है. भाई दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है. वही है ना, अगर तुम बहुत क्या बोलते हैं, किसी को चुभेगी या किसी को अच्छी लगेगी, अगर आज आपका नाम है ना इंडस्ट्री में, तो ये ऊपर वाले की देन है जो आपके कर्मों को छुपा के रखा है. वरना कांड करने में कोई कम नहीं है. तो अगर लोग मुझसे मुतासिर है, तो मैं इस गुमान में ना रहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं. मुझे बल्कि इस चीज को सोचना चाहिए कि खुदा ने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल के रखा है. तो इंडस्ट्री में जो झगड़े चालू है ना, वो पर्सनल लाइफ तक चले गए, विच इज वेरी रॉन्ग. वो नहीं होना चाहिए.
एंड सर जैसे आपने बोला आपके पास एक मोहम्मद अली रोड से एक लड़का आया था, सो अगर एक समझो एक लड़का था, समझो मैं ही आपके पास आया हूँ, 20 year old, सपोज आई एम टेकिंग माई सेल्फ बैक टू 10 years old, 10 साल में पीछे जा रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ कि सर मैं 20 साल का हूँ और मुझे एक कॉन्टेस्ट प्रेप करना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स यू कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग अ स्टूडेंट इन? अभी मेरे पास एक 17 साल का बच्चा है जो साइकिल पर है, मेरे हाँ पास एक 19 साल का बच्चा है जो साइकिल पर है. हाँ. मैं बहुत खुला बोल रहा हूँ, बट वहां पे उनके पेरेंट्स का कंसर्न, वो अप्रूवल है. हाँ बराबर. His mother had given me consent कि sir, you are allowed to run cycle on him. We are responsible for anything that happens because we want him to become a professional bodybuilder. So just for the heck of using anabolics, don't use it. Right. Your objectives, your purpose, your aim should be well defined. Defined, हाँ. In fact, बच्चों के लिए ही नहीं, मैं बड़ों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ हाँ. कि if there is no need, don't use it. One of my trainers in my gym is maintaining 750 plus level of total testosterone naturally. Oh, He has never used even orals in his life. okay. Basic supplements, Hmm. 8 to 10 hours of sleep, everyday workout, Hmm. and a good lifestyle. Hmm. ठीक है? He's 36. Hmm. So I told him he doesn't need steroids Steroids. because he doesn't want to compete. Right. एंड सपोज अगर टीआरटी के नाम पे अगर कुछ दिया जा रहा है तो टीआरटी क्यों करना है जब वो 750 वैसे ही मेंटेन कर रहा है. बराबर. तो ये इन जनरल है, बच्चों के लिए ही नहीं. अब अगर कोई बच्चा आता है तो वहां पे पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों यूज कर रहा है. कंपटीशन खेलना है, इसी में करियर बनाना है, तो समझ में आता है. बट उसके लिए भी ब्लड टेस्ट कराओ, जरूरत है तो करो, नहीं तो नेचुरली खींचो बहुत दिनों तक के. हाँ, अब अगर कंपटीशन प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है तो यू हैव टू गेट जैक टू विन. जो लोग शो जीत रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि वो नेचुरल है, तो वो झूठे हैं. झूठ है. वो महा झूठे हैं. क्योंकि पूरे लाइनअप में जो स्टेरॉइड यूज कर रहा है वो हार जाएगा और जो नेचुरल है वो जीत जाएगा. ये कैसे मुमकिन है? इनफैक्ट मेरा तो एकदम बेसिक सवाल है इन लोगों से, ये जो फेक नैटीज है ना, आई वुड नॉट नेम देम, वरना इनकी सुलग जाएगी और कल ये पॉडकास्ट मेरे कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप नेचुरली वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज ला रहे हो और वो स्किन कंडीशन मेंटेन कर रहे हो जो एक एनहांस बॉडी बिल्डर लाता है, ठीक है, आप स्टेरॉइड डिपेंडेंट नहीं हो. एक एनहांस बॉडी बिल्डर का क्या होता है, वो गेनिंग पे उसके एब्स चले गए, स्किन उसकी मोटी हो गई. अब जब वो कट करेगा, दूसरे कंपाउंड यूज करेगा, तब उसके एब्स आएंगे, उसकी स्किन पतली हो जाएगी, सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज में चला जाएगा. सो एन एनहांस बॉडी बिल्डर इज स्टेरॉइड डिपेंडेंट. उसका पूरा गेम जो है वो स्टेरॉइड पे डिपेंड करता है. बट जो लोग अपने आप को नैटी क्लेम कर रहे हैं, तुम तो स्टेरॉइड पे डिपेंड ही नहीं करते हो, तो तुम क्यों भैंसा हो जाते हो? तुम वो कंडीशन फिर क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हो? तुम स्टेज पे कैसे लेकर आ जा रहे हो वो कंडीशन, पेपर स्किन कंडीशन? तो ये सब ढकोसले है. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पब्लिकली नेचुरल क्लेम करते हैं और दबा के स्टेरॉइड यूज करके शोज जीते हैं. फिर वो मसल मेनिया ही क्यों ना हो, वो WNBF ही क्यों ना हो, वो ICN ही क्यों ना हो. आई नो एथलीट्स हु हैव यूज्ड स्टेरॉइड्स, won the shows, claim to be natural, and they're all fake natties. क्योंकि मेरे को भी ना अभी हाल ही में हमारा पॉडकास्ट हुआ था, मैं और DR के. सो वी हैड गॉन टू निखिल सर. सो निखिल सर ने लाइव मुझे से ट्रॉफी दिखाई. हमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में लड़के ने ट्रॉफी जीती है और मुझे पता है उसने कौन सा माल चला है. हाँ, उसने बोला. और ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो क्लेम कर रहे हैं ना सर नैटी, तो मैंने ये भी पूछा कि जो डोप टेस्ट होते हैं वो सही है. सो ही आस्क्ड मी जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, 500 लोग कंपीट करें, 500 लोगों के डोप टेस्ट नहीं होता है किसी का. बस अभी IFBB प्रो लीग इंडिया में ऐसा फेमस हो गया है. पहले IFBB प्रो लीग ऐसा कुछ होता नहीं था. देयर वाज वन IFBB प्रो लीग इन USA और उसका एक सब बॉडी हुआ करता था IFBB एमेच्योर लीग. और IFBB एमेच्योर लीग जो स्पेन से ऑपरेट करता था, वो हर कंट्रीज में एक एसोसिएशन बनाता था. जैसे इंडिया में डॉक्टर संजय मोरे का था, IBBFF. तो IBBFF को इन लोगों ने वाड़ा के अंदर लेकर आए थे, वर्ल्ड वाइड एंटी डोपिंग एसोसिएशन और अथॉरिटी, आई थिंक एसोसिएशन एंटी डोपिंग. तो व्हेन वी वर डूइंग शोज इन मंगोलिया,
तो वहां पर वही एथलीट्स का टेस्ट हो रहा था कि अगर वो पॉजिटिव डिटेक्ट भी हो जाए और उसको बैन कर दिया जाए तो उसके करियर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैसे ही बॉडी नहीं है, वो वैसे ही अगले 1-2 साल तक जीतेगा नहीं। तो एक, या तो खुन्नस में ब्लड टेस्ट होगा और उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाएगा। 2, या तो उस बंदे का भी फ्यूचर, नियर फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर वो बैन भी हो जाता है तो उसके करियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर 500 एथलीट, जैसा आपने कहा वो सही है, अगर 500 एथलीट्स खेल रहे हैं तो 500 का टेस्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अभी एक हाल ही में एक बहुत ही फेमस नेचुरल शो हुआ है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। उन सबके यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल लिए गए। 3 दिन तक विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल सैंपल ऑफिस में पड़ा रहा। ओके, शिट। वो सैंपल लैब्स तक गया ही नहीं, कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई ही नहीं। 1 हफ्ते बाद सैंपल गया, मगर 1 हफ्ते के पहले यहाँ सोशल मीडिया पे डिक्लेयर हो गया ऑल एथलीट्स वर नेगेटिव। तो इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, लोगों को खाली बहकाया जा रहा है। और होता क्या है कि जो नए बच्चे हैं ना, उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाइपोथेटिकल बिल्ड हो चुके हैं। राइट, हाँ। एंड दिस हैज बिकम अ बिजनेस। अब एक बंदा जो स्टेरॉइड यूज कर रहा है और वो आप बोलेगा कि मैंने ये नेचुरली अचीव किया है, तो एक कॉलेज जाने वाले बच्चे को वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगी कि अरे यार, आई कैन ऑल्सो बिल्ड दिस फिजिक नेचुरली। नाउ ही विल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। बोले वॉट एवर ही ईट्स आई ईट। नाउ देयर विल कम इनटू पिक्चर अ ब्रांड। वो फेक इन्फ्लुएंसर को पकड़ेंगे, बॉस यू प्रमोट माय प्रोटीन, यू प्रमोट माय क्रिएटिन। अब तो ये भी होता है कि क्रिएटिन से बॉडी बन जाती है। बेचने के लिए आदमी कुछ भी बेच रहा है। एप्पल साइडर विनीगर से फैट लॉस हो जाता है। तो ये एक बिजनेस बन चुका है। तो जो फर्स्ट स्टेप है जहां पे उसने स्टेरॉइड यूज किया है, उसको छुपा दिया जाता है। तो मैं ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को जानता हूँ जो साइकिल पे रह चुके हैं और वो आज वो अपने आप को नेचुरल क्लेम करके शोज खेल रहे हैं। तो ये इस इंडस्ट्री का सबसे गंदा साइड है। मतलब आप जो कर रहे हो, आप वो बोलो मैं ये कर रहा हूँ। आप किसी को कुछ करवा रहे हो तो आप बोलो उसको कि मैं तुझसे ये क्यों करवा रहा हूँ। उसके प्लस माइनस आप शेयर करो उसके साथ में। बराबर सर। और सर अभी ना, जैसे आपने बोला टीनेजर्स में स्टेरॉइड अब्यूज इतना बढ़ क्यों रहा है? देखो, ये एक इंसानी फितरत है, हर किसी को अच्छा दिखना है। हाँ, कॉस्मेटिक पर्पस। हाँ, कुरान में एक आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानी तक़वीम, एंड वी हैव क्रिएटेड यू ह्यूमंस इन द बेस्ट ऑफ द स्टेचर। मतलब हमने आपको सबसे बेहतरीन ढांचे में बनाया है। बट इंसान की जो फितरत है ना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे और खूबसूरत दिखना है, मुझे और खूबसूरत दिखना है, मुझे और खूबसूरत दिखना है। तो अब वो खूबसूरती किसी की चेहरे पे है, किसी की फिजिक पे है, किसी के फैट परसेंटेज में है, किसी के मसल मास में है, किसी को ऐसा लगता है मैं एंड्योरेंस ज्यादा अच्छा कर लूं, उसके लिए भी स्टेरॉइड्स यूज हो रहे हैं। तो वो जो एक नोशन बैठ गया है ना, हैव टू इम्प्रूव, बट टू व्हाट लेवल वो किसी को पता नहीं है। तो मेरे बाजू वाला अगर स्टेरॉइड यूज कर रहा है तो मुझे लगेगा अरे ये जो यूज करके इसने बनाया है ना, तो मैंने भी यूज कर लेना चाहिए। और फिर मैंने आपको कहा ना कि इंडस्ट्री में सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है। ट्रेनर को आज बहुत सारी जिम्स ऐसी है जो इतना निचोड़ देती है ट्रेनर्स को कि ट्रेनर के पास में माल बेचने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा, I don't see any other gym in India other than i5 Fitness, जो मेरा जिम है, जहां पे 5 days a week जॉब है, साल की 12 सिक लीव है, साल की 12 अर्न लीव है, 3 नेशनल हॉलीडे है, 3 फेस्टिवल हॉलीडे है, एक न्यू ईयर हॉलीडे है, एक तुम्हारा बर्थडे हॉलीडे है, 50% पीटी कमीशन है और 10% ऑफ योर रेवेन्यू बेसिक सैलरी है। Very good. And hence my trainers have always been loyal and honest to me. अब जब मेरे ट्रेनर्स को अगर कोई अंडर टेबल देता है तो मेरा ट्रेनर मुझे खुद आके बोलता है कि सर कीप एन आई ऑन हिम, ही वाज ऑफरिंग मी दिस मनी, आई हैव सेड नो, ही माइट गो टू अदर ट्रेनर. So this loyalty has come into existence only because I have given them that environment. चोरी वही करता है जिसके पास नहीं होता है। अगर किसी का पेट भरा हुआ होगा ना, वो दूसरे के खाने की तरफ कभी नहीं देखेगा। तो जिम ओनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है,
भाई आज हाउसकीपिंग हमारे जिम में अगर 18 से 20 हजार रुपया कमा रहा है या कमा रही है, तो आज बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जहाँ पे आप ट्रेनर्स को 10 हजार में सैलरी पे रख रहे हो पूरे महीने का, उसमें तो उसके 5 हजार का तो पेट्रोल डीजल चला जाएगा, तो वो 8 घंटे आपके पास क्यों काम करेगा? वो दौर खत्म हो गया जब आप किसी को निचोड़ लेते थे 8-10 हजार रुपए में। आज आपको 25 हजार के नीचे ड्राइवर नहीं मिलेगा। राइट सर। Driving is a skill, I understand, but that skill is only limited to holding the steering and controlling the car, right, without doing any sort of accident. ट्रेनर का तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है ना। राइट सर। वो तो किसी की जान के साथ में खेल रहा है फ्लोर के ऊपर। एक इम्बैलेंस होने से उस क्लाइंट का कुछ भी हो सकता है। अब आप उस ट्रेनर को 8 हजार में रखोगे, ऐसे जिम्स अंधेरी में है जहाँ पे ट्रेनर को 6 हजार रुपया सैलरी मिल रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ, Shit. आप 6 हजार से ज्यादा का तो सिगरेट और चाय पी जाते हो महीने में, तो वो ट्रेनर मजबूरी में काम कर रहा है। आप किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, उसमें आपका खुद का भी नुकसान होगा और वो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान कर देगा। अभी सर ये तो दूर की बात है, आजकल पीटी रेशियोज भी देते हैं ना जिम्स, जैसे कोई जिम आपको 30% पीटी रेशियो दे रहा है ट्रेनर को, उसमें से भी 5% जीएसटी और 5% टीडीएस काट रहे हैं। भरता है कि नहीं पहले वो भी तो चेक किया जाए। वो भी बराबर है। इट्स एक्चुअली दैट वर्स कि इतना अगर देखो कोई आपका पैसा काट रहा है, यू हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन, आपने अगर ये पैसा मेरे से काटा है तो आपने सरकार को भरा है या नहीं भरा है? नहीं भरा। आपने अगर मेरे पैसे में से टीडीएस काटा है तो आप मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट दो। सिंपल है। आपने मेरे पैसे में से जीएसटी काटा है तो आपने जीएसटी भरा है, मेरे को आप उसका प्रूफ दो। तो ट्रेनर भी कब पूछेगा? जब ट्रेनर खुद चोर ना होगा तो। अगर ट्रेनर खुद ही चोरी करने में बिजी होगा, लोगों को लूटने में बिजी होगा, ठगने में बिजी होगा, तो वो अपना अधिकार कैसे पूछेगा? बराबर है। अब सर डिस्कस करते हैं द एक्सपेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सर मैंने ऐसे सुना है बहुत सारे लोगों से कि जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी बॉडी। फैक्ट। आप इससे कितना? मैं तो बहुत सहमत हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गरीब बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा। अब इसको दोनों नजरिए से आप देखो। जितने पैसे वाले लोग हैं वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे। यू सी अंबानी इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग, अडानी इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग, टाटा इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग, विप्रो इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग नहीं, पूनावाला डूइंग बॉडी बिल्डिंग नहीं। तो बॉडी बिल्डिंग का जो कीड़ा काटा है ना, वो काटा ही गरीबों को है। गरीबों को। हम भी गरीब है, हम कोई अमीर नहीं है। तो गरीब के अंदर एक वो है अंदर से, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, कुछ दैट ज़ील के मुझे करना है, फिर वो किसी भी तरीके से करेगा। अब वो होता कैसे है मालूम है? एकदम सिंपल फंडा है वो। इट इज एन अनइंटेंशनल मैनिफेस्टेशन। वो सोचता है मैं करूंगा और भगवान उसके फेवर में काम करता है कि बेटा तू इतनी मेहनत कर रहा है तो तू कर लेगा। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। तो उसके पास में उस टाइम पे सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, बट सिंस ही हैज डिसाइडेड वो किसी ना किसी तरीके से अपना इंतजाम कर लेता है और बॉडी बिल्डिंग कर लेता है। 90% ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आज की डेट में दे आर फेसिंग सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, challenges in their life, and they are still doing bodybuilding. And like I said, I appreciate them, I salute them. Now coming to the expenses, yes, bodybuilding is the most expensive sport. अब अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप एक लिमिट पे जाके रुक जाओगे। सपोज इफ यू हैव अ बजट ऑफ हार्डली 10,000 15,000 अ मंथ, आपने 10,000 का स्टेरॉइड लिया, 10,000 का सप्लीमेंट लिया, 20,000 में आप निपट गए। 20,000 में आप निपट गए। बट अगर आपको अब एडवांस बॉडी बिल्डिंग पे जाना है तो आपको नॉट जस्ट स्टेरॉइड, आपको सप्लीमेंट्स में इजाफा करना पड़ेगा, आपको खाने में इजाफा करना पड़ेगा, आपको स्टेरॉइड्स में इजाफा करना पड़ेगा, आपको पेप्टाइड्स ऐड करने पड़ेंगे, तब वो पैसे कहाँ से लाओगे? सो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आज की डेट में इंडियन एनवायरनमेंट में नहीं बोल के लाख सवा लाख रुपया महीने का खर्च करता है। कोई भी प्रो बॉडी बिल्डर होगा, भले वो प्रो कार्ड जीता हो या ना जीता हो। Again, winning a pro card does not entitle someone to become a professional bodybuilder. Right. Professional bodybuilder is a professional bodybuilder. Pro card is one title right. which is an achievement, to be very honest. वो उसने मेहनत करके जीता है। तो pro card हो या ना हो, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो महीने का लाख सवा लाख रुपया खर्चा अपने ऊपर करता है। राइट। और प्रो कार्ड जो अगर अपने प्रो कार्ड कॉम्पिटिशन्स भी है, कॉम्पिटिशन का भी अलग खर्चा। हाँ, रजिस्ट्रेशन। अगर
अभी किसी भी प्रो कार्ड होल्डर का आप केस हम्म, उठा लीजिए, अगर वो कोई इंटरनेशनल शो खेलने जाता है हम्म, तो कोई बहुत ही चीपेस्ट कंट्री में भी जाएगा तो उसका 1.5-2 लाख रुपए का एडिशनल एक्सपेंस है. additional expenses. Right, Suppose flight tickets. Manoj went to Japan, Okay. he must have spent around 3.5 to 4 lakh rupees for a week. For a week. For a week. Okay. You will not travel alone. हाँ, You will have one company, your company. friend, your wife, your coach, हम्म, or your assistant, or whoever you are taking along with. हम्म, तो आपकी टिकट, उसकी टिकट, आप हम्म, दोनों का रहने का खर्चा, खाने का खर्चा. तो you go to an expensive country, you spend anywhere around 3.5 to 4 lakh rupees for a week, which Okay. is an additional cost to your contest prep. Okay, understand. अब सर काफ़ी लोगों को भी ये जानना है और मुझे भी, एंड इवन एस्पायरिंग एथलीट्स जो अभी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, लेवल जैसे मनोज सर जैसे बनना चाहते हैं या फिर सुनील यादव सर जैसे बनना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एथलीट्स होते हैं टॉप लेवल के, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, कि क्या स्पॉन्सर्स इतना स्पॉन्सर कर रहे हैं और हाउ डू दे मैनेज ऑल दिस? देखो, सोर्सेज ऑफ इनकम इन बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो स्पॉन्सरशिप हर किसी को नहीं मिलती है. हाँ. स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने की वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों का रीच है, सेलिंग पावर नहीं है. अंडरस्टूड. मिसाल की तौर पे अगर आप मुझे या मैं आपको महीने का ₹1,00,000 दे रहा हूँ तो आप मुझे ₹1,00,000 का सेल तो दोगे. अगर मैं आपको महीने का ₹1,00,000 दूं और आप मुझे 0 सेल दो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं भी ऊब जाऊंगा कि यार मैं क्यों ₹1,00,000 इसको दूं, मैं ₹1,00,000 का ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा, कम से कम एड्स रन होते रहेंगे. तो अगर रीच ही बढ़ना है तो आई हैव डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु विल न्यू सेट ऑफ पीपल हु विल सी माय एड्स. तो सेल नहीं देता है एथलीट, उस वजह से यहाँ पे इंडिया में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है बहुत लोगों को. दैट इज वन सोर्स ऑफ इनकम. सेकेंड इज यू ट्रेन पीपल ऑन फ्लोर, you coach them online, you sell supplements. Again, selling anabolics also is one of the sources for few people. So these are the sources where people will have to explore. हर किसी को तो नहीं मिलता है. हाँ, अब अगर आप ये बोलो कि जैसे आपने कहा मनोज सारंगपानी, सुनील यादव, they are elite athletes of India. ठीक है. So they have good set of clients where they are training. They have parallel coaching and sponsorship. Okay, understood. नाउ लेट्स डिस्कस ब्लड वर्क एंड ऑर्गन हेल्थ. अब हम लोग आते हैं पूरे प्रेप कोच के जोन में. सो सर, व्हाट आर द नेसेसरी ब्लड टेस्ट जो हर एक एथलीट को करने जरूरी है इफ इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्टेरॉइड साइकिल? देखो, एथलीट हो या कोई नया बंदा हो जिसको अगर स्टेरॉइड यूज करना है, उसको कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल उसका पता होना चाहिए. ओके. जैसे कि उसका सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट, रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, vitamin B, vitamin D. These are the most essential blood reports that I always ask for. In general, अगर कोई steroid नहीं भी use कर रहा है तो. Now, somebody is adding steroids to his cycle and enhanced bodybuilding. Then I would ask for hormones too. Then they will come into picture testosterone free and total, estrogen, cortisol, prolactin, DHT, SHBG, LHFSH. Somebody is using steroids for quite long time, then I would add few more tests. D-dimer, troponin, एक CRP होता है, वो सारों में ऐड हो जाता है. अब सर, नाउ टॉकिंग अबाउट पेप्टाइड्स, जैसे पेप्टाइड्स होते हैं जैसे IGF LR3 हो गया, नहीं तो IGF डेस हो गया, और उसके साथ HGH हो गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. सो ये बोला जाता है कि इनसे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा एक मिथ है या फिर क्या है, मुझे नहीं मालूम. सो एज अ कोच व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि सेल्स मल्टीप्लाई करता है, ऐसे बोलते थे? देखो, दो चीजें. जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन बना रही है और उसके मरते दम तक ग्रोथ हार्मोन बनेगा बॉडी में. अब वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा. सिमिलरली एक आदमी है, उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बना रही है, उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन 27 पे पीक पे जाएगा, जो एक यूथ एज होती है एक लड़के की. 27, 28, 29 जो भी है, उसमें उसका टेस्टोस्टेरोन, उसका ग्रोथ हार्मोन एकदम पीक पे होगा. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बीच में से, टॉपिक को काटते हुए. आप किसी 27 साल के लड़के को लो और एक 45-50 साल के आदमी को लो. दोनों को आपने सेम डाइट दिया है, सेम वर्कआउट दिया है, सेम सप्लीमेंट्स दिया है,
स्लीपिंग पैटर्न सेम है, क्वालिटी ऑफ स्लीप सबका सेम है, ठीक है। 27 साल का जो लड़का है ना, वो अपना मसल मास ज्यादा मेंटेन करेगा एज कम्पेयर टू 50। जेनरिक डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। 27 साल वाला लड़का अपने फेस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बट he'll have a better glow, better skin quality than the 50-year-old guy. रीजन बीइंग 27-28 जो एज है, 25 to 30 का जो विंडो है, यहाँ पर उसकी बॉडी में सब पीक पर है। उसका कोलेजन पीक पर है, उसका ग्रोथ हार्मोन पीक पे है, उसका टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, मतलब ही इज स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है, अब वो 35 की एज के बाद में ड्रॉप होना चालू होगा, बंद नहीं होगा, वरना पूरा मसल चला जाएगा, ड्रॉप होना चालू होगा। एंड हाउ इट ड्रॉप्स इज 1% एवरी ईयर। तो किसी का अगर 700 है तो 700 विल बिकम 690, 680, ऐसे ड्रॉप होना चालू होगा, इवन इफ ही इज मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। किसी की लाइफस्टाइल एकदम फक्ड अप है तो वो बहुत स्पीड से ड्रॉप होगा। तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में लाइफ टाइम रहेगा, ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में लाइफ टाइम रहेगा। अब क्या होता है, जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से यूज करते हो तो आप आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हो, बिकॉज योर बॉडी इज मेंटेनिंग 100 और इंजेक्टिंग 1000 एक्सटर्नली। तो नेचुरली स्लो डाउन हो गया है। अब जब एक्सटर्नल वाला जो है आपने बंद कर दिया, अगर एक्सोजेनस बंद कर दिया है, तो नेचुरल वाले को वापस से सेम लेवल पे आने के लिए वक्त लगेगा, जिसके लिए आप पीसीटी वगैरह करोगे या कोई दूसरा ट्रीटमेंट करोगे। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो जो नेचुरल लेवल आपका था वो वापस से सेम अचीव नहीं होता है, थोड़ा नीचे ही जाके रुक जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी बना रही है, बनाती रहेगी। जब आप ग्रोथ हार्मोन लोगे तो बॉडी में बढ़ेगा, जब आप बंद कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन कभी बंद नहीं होगा। एक दूसरा, यस, ये बहुत ही कॉमन डिस्कशन है सोशल मीडिया पर कोचेस के बीच में कि ग्रोथ हार्मोन यूज करने से कैंसर बढ़ जाता है। डू नॉट अब्यूज योरसेल्फ, राइट, डू नॉट अब्यूज योरसेल्फ। आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन तो बना ही रही है, आप उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन का इजाफा कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि भाई आपके फैमिली में किसी को कैंसर है, आपके मॉम के साइड में हो या आपके डैड के साइड में हो, इमीडिएट फैमिली हो, तो गेट द स्क्रीनिंग टेस्ट डन। ऐसे बहुत सारे कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां से आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर प्रोन टू कैंसर और नॉट प्रोन टू कैंसर। वो जो डिलेमा में आप जी रहे हो ना, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस चक्कर में आपकी बनने वाली बॉडी भी नहीं बनेगी। ये बात है। तो आज मेडिकल फील्ड इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है ना कि आप हर चीज टेस्ट कर लो, अगले दिन दूसरा स्टेप ले लो। अगर आप आ रहे हो, यू आर प्रोन टू कैंसर, देन डोंट यूज इट। राइट, नो ट्रॉमा में बॉडी बिल्डिंग चालू हो जाए। हाँ ठीक है। और सर जैसे ये भी चीज़ होगी ना, और एक चीज़ अभी उभर रही है, जैसे साम्स, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। लोगों को ना आजकल बहुत सस्ता और अच्छा अल्टरनेटिव चाहिए कि मैं 12,000 HGH पे क्यों डालूं, उससे अच्छा मैं MK677 लेता हूँ। इट्स लोग बोलते हैं कि ओरल ग्रोथ हार्मोन ले लिया, खत्म। और जैसे रैड 140 भी आ रहा है कि लोग बोले इट इज 10 times मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। सो व्हाट डू यू थिंक दीस साम्स, ये जो साम्स है वो सच्ची काम करता है? साम्स काम तो करता है, अच्छा, ये तो फैक्ट है। जैसे तुम्हारा स्टेरॉइड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक है, ये स्पेसिफिकली एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा जो साम्स है। साम्स को 100% सेफ बोलना बेवकूफी है। तो अगर कोई साम्स को 100% सेफ बोलता है तो वो दो में से कोई एक बंदा होगा, ही मस्ट बी द सेलर और ही मस्ट बी लैकिंग द नॉलेज। सिंपल। साम्स के लिए वही प्रिकॉशंस आपको लेने जो प्रिकॉशंस आप स्टेरॉइड्स पे लोगे। सन 2017 में मैं जोगेश्वरी वेस्ट में एक जिम में वर्कआउट करता था और एक लड़का साम्स यूज करना चाह रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई साम्स यूज कर रहा है ना, साम्स पर भी देखो स्टेरॉइड्स वाले ही प्रिकॉशंस लेने। तो उसने मेरे को बोला नो, इट इज अ सप्लीमेंट व्हिच एक्ट्स लाइक स्टेरॉइड, इट इज अ माइल्ड स्टेरॉइड, इट इज अ सिस्टर स्टेरॉइड, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने उसको बोला बॉस एक काम करना, मैं तेरे ब्लड टेस्ट का पैसा दूंगा, तू साम्स चला, तेरे को जैसा चलाना है, जब तू बंद करेगा तो वापस से ब्लड टेस्ट कराना, मैं तेरे को पैसा दूंगा। वो रिपोर्ट आज भी मेरे मोबाइल में है। अच्छा, हाँ। तो उसने साम्स का साइकिल रन किया था फॉर 10 weeks। I don't remember what SAMS was it exactly now,
बट जो साइकिल उसने साम्स का रन किया उसके पहले हमने ब्लड टेस्ट करवाया और 2-2.5 महीने बाद जब उसने साम्स बन गया वापस आई पेड फॉर हिज ब्लड टेस्ट, वी गॉट द ब्लड वर्क डन. आई वाज नॉट हिज कोच, ओके. ही वाज जस्ट अ पर्सन नोन टू माय फ्रेंड. उसका एस्ट्रोजन आसमान छू गया. क्यों छू गया? अगर साम्स तुम्हारा सप्लीमेंट था तो तुम्हारे को हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं होने चाहिए थे. तो साम्स का फंडा ऐसा है कि साम्स आर स्टिल अंडर डिस्कवरी, अंडरस्टूड. हाँ. दे आर अंडर रिसर्च स्टिल. तो बट अब काफी एडवांस हो चुका है. आज से 10 साल पहले जो साम्स का केस था आज वैसा नहीं है. बट स्टिल 100% ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द साम्स हैव स्टिल बीन नॉट नोन. ओके. सो पीपल कॉल इट सेफ. तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम उसको सेफ बोल रहे हो, ये भी बेवकूफी है. यहाँ से कूदूंगा मैं और हाथ टूटेगा या पैर टूटेगा मुझे पता नहीं है. हो सकता है मैं बच भी जाऊं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ से कूदना सेफ है. तो सेम गोज विद द साम्स. साम्स अगर कोई यूज कर रहा है, साम्स विल गिव यू रिजल्ट्स, नो डाउट. आई सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, साम्स विल गिव यू रिजल्ट्स. बट साम्स पर भी आपको वो प्रिकॉशंस लेने जो आप स्टेरॉइड्स पे लोगे. कितने लेने, कौन से लेने, वो आपका कोच डिसाइड करेगा. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जिसे बुला जाता है HGH IGF क्रेज. कि सर अगर मैं देखो मैंने भी compete किया है, सो आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम कि अगर मैं 1 लाख स्टेरॉइड्स पे डालूंगा एंड 1 लाख मैंने HGH पे डाले, सो आई विल ग्रो मच बेटर ऑन स्टेरॉइड्स. पर आजकल कोचेस HGH को इतना पोटेंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने compete किया आई वाज ऑन 4 IUs ऑफ HGH अ डे एंड आई गॉट गुड फैट लॉस रिजल्ट्स. बट आजकल बहुत ज़्यादा अब्यूज किया जा रहा है. देखो बहुत सारी चीजें. HGH का एक फंडा ये है कि मैं खुद अगर आज से 15 साल पहले वाली बात बोलूंगा तो एथलीट्स भी 2 आयु HGH यूज करते थे. 2 IUs, 3 IUs, and people used to call 8 IUs, 10 IUs of HGH as abuse. But the fact is, up to 4 IUs of HGH, it still remains in the cosmetics side of HGH. Right. So when you go above 5 IUs, 6 IUs, then you actually come into the bodybuilding side of HGH. वो अवेयरनेस अब आया है, इसलिए अभी HGH का यूज बढ़ गया है. शर्त यह है कि HGH ओरिजिनल होना चाहिए. HGH अब्यूज कब होगा? जब आप 20 आयु, 25 आयु, 26 आयु, 30 आयु HGH यूज करोगे, जो इंडिया में कोई भी नहीं करता है. इन वन ऑफ द इंटरव्यूज व्हिच आई हैड हर्ड ऑलमोस्ट अ decade ago, Jay Cutler was mentioning he used 18 IUs of HGH a day. मैंने तो इंडिया में किसी को 20 आयु 18 आयु यूज करते हुए नहीं देखा है आज की डेट में. तो इट इज नॉट ओवर यूजिंग HGH, इट इज एक्चुअली द नॉलेज विच हैज बिकम ओपन वेयर पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बॉस जो मैं 2 आयु यूज कर रहा था ना वो कोई मतलब का ही नहीं है. मतलब तुमको भूख लगी है, तुमको खाना खाना है, तुम्हारे सामने एक प्लेट रखी है, बट तुम बोलोगे कि मैं हर 2 मिनट बाद आके एक निवाला खाऊंगा. खाओगे आप पूरा प्लेट, मगर आप बोल रहे हो कि हर 2 मिनट में एक निवाला खाऊंगा, तो नहीं चलेगा. तो वेयर एथलीट्स हैव रियलाइज्ड कि बॉस मैं 2 आयु यूज कर रहा हूँ, उससे बेहतर ये है कि मैं 5 आयु 6 आयु यूज करूँ और साइकिल कर दूं, ऑन ऑफ कर दूं. राइट. अब सर अमेच्योर ओलंपिया लेवल पे व्हाट इज द एवरेज डोज ऑफ HGH एथलीट्स एट डिपेंड्स ऑन द कोच. There are people who did not have budget. I have coached them. They have not used HGH. They have stepped on Olympia amateur stage. They have won. There are people who are using 10 to 12 IUs of HGH a day. So if your budget allows, use it. If your budget doesn't allow, don't use it. Remember the fact, the most important thing in your life when it comes to prep will be the food. The first is food. The second is your workout, recovery, sleep, etc., etc. I'll give you an analogy. Your body is the most expensive car. Right. ठीक है. और उस कार के अंदर जो फ्यूल डाला जा रहा है ना, वो है आपका स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स. बट उस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठ रहा है ना, वो है आपका डाइट और आपका स्लीप, न्यूट्रिशन. तो अब आपकी कितनी महंगी गाड़ी हो और कितना ही अच्छा आपने उसके अंदर फ्यूल डाला है, अगर आपका ड्राइवर अनस्किल्ड है, सो ही विल गो एंड हिट द कार, योर कार विल बी डैमेज्ड, एक्सीडेंट ही होगा. तो उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आप कितना ही महंगा स्टेरॉइड डालो या 10 गुना ज्यादा स्टेरॉइड डालो या HGH की बारिश कर दो अपनी बॉडी के ऊपर, अगर आपका खाने का पैटर्न बिगड़ा हुआ है, आपका डाइट बराबर नहीं है और आपकी नींद बराबर नहीं है, तो आपकी बॉडी नहीं बननी है.
अब सर जैसे आईजीएफ का बात हुआ, जैसे आईजीएफ LR3, आईजीएफ डैश, लोग बोलते हैं कि आईजीएफ अगर मैं बाइसेप में इंजेक्ट करूं सो मुझे वो पर्टिकुलर मसल मेरा ग्रो होने में हेल्प करता है, सो ये इज सब वहम है, इट इज ऑल मिथ, इट्स अ रूमर। ओके? मेरे बॉडी के हिसाब से मेरे बाइसेप्स छोटे, हाँ, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है। मतलब सीइंग द साइज दैट आई कैरी ऑलवेज 100 kgs प्लस, आई शुड हाँ, हैव बिगर आर्म्स। हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं आईजीएफ सिर्फ आर्म्स में मार मार के अपने आर्म्स बढ़ा लेता। कोई एथलीट इनकम्प्लीट पैकेज पे स्टेज पे नहीं आता। किसी के काफ्स छोटे है वो अपने काफ्स में आईजीएफ मारता, किसी के डेल्ट्स छोटे है वो डेल्ट्स में आईजीएफ मारता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। होता ये है कि आ, जितने भी पेप्टाइड्स है वो सारे जाके इंसुलिन लेवल पर ही काम करते हैं, एंड इट इंक्रीजेस योर प्रोटीन सिंथेसिस, योर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एज वेल एज योर फैट सिंथेसिस। अभी जो एक इंसुलिन मारने का आपका बहुत कॉमन ट्रेंड चालू है, हर बॉडी बिल्डर इंसुलिन मार के कार्ब्स खाता है हाँ, ये हो रहा है। ईमानदारी से, और कोचेस की गांड फटती है इंसुलिन देने के लिए। हाँ, इंडिया में मैंने नहीं देखा है कि कोचेस एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में इंसुलिन देते हैं, फॉरेन कोचेस देते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, अगर इंसुलिन आपके बॉडी में सारा सिंथेसिस बढ़ा देता है, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी, फैट भी। अगर एक जाड़े आदमी के ऊपर आप इंसुलिन चलाए जा रहे हो तो उसके ऊपर कार्ब्स का कुछ फंडा काम नहीं करेगा, प्रोटीन का कोई फंडा काम नहीं करेगा। तो सारे पेप्टाइड्स जो है ना वो इंसुलिन लेवल पर जाकर काम करते हैं। एक दूसरा, ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। बॉडी को जब चोट लगेगी, ठीक है, तो अगर मेरे को हाथ पे चोट लगी है तो पूरे बॉडी का सेंसर सिस्टम इस तरीके से काम करेगा कि सबसे पहले ये चोट को हील करना है। खा रहे हो आप मुंह से, मगर वो न्यूट्रिशन पहले उस वुंड तक पहुंचाने का काम करेगी बॉडी। तो जब आप इंजेक्ट करते हो ना बॉडी में कोई भी चीज, भले वो इंसुलिन नीडल हो या आपका नॉर्मल नीडल हो, तो इट क्रिएट्स अ टेम्पररी इन्फ्लेमेशन। ओके, बहुत बेसिक लॉजिक है इसमें, हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, वो एक छोटा सा माइनर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है उधर पे, और कंपैरेटिवली उस बॉडी का वहां पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। समझा। अगर आईजीएफ चेस्ट में मारा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ, नहीं होगा। मगर वहां पे इन्फ्लेमेशन क्योंकि बढ़ गया है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये न्यूट्रिशन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। अच्छा, हाँ, तो आईजीएफ स्पॉट ग्रोथ करता है, ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो कोई बॉडी बिल्डर इनकम्प्लीट पैकेज में आता ही नहीं। राइट, राइट। और अभी एचजीएच और आईजीएफ की बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ों के रिलेटेड एक और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे मेंस और क्लासिक में मैंने नहीं देखा, बट 2-on-2 की बात करें या फिर ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करें, तो बॉडी बिल्डर्स एक बबल गट लेके आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार इंटेस्टाइन बढ़ गए, बढ़ गए, वो बढ़ गए, इसने जीएच ज़्यादा लिया, एक्सेट्रा। पर व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इट? इज़ इट एचजीएच? इज़ इट ब्लोटिंग और एन इनकम्प्लीट कॉन्टेस्ट प्रेप? इट इज स्टूपिडिटी। अच्छा, आपके बॉडी में हाँ, आप जो भी स्टेरॉइड कंपाउंड, एनाबॉलिक कंपाउंड या पेप्टाइड्स आप यूज कर रहे हो, आप हाँ, हद से ज्यादा खाना खा रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है? ग्रो ना, ग्रो करना। क्या ग्रो करना है आपको? मसल्स, मसल। आपके बॉडी में जो आपके ऑर्गन्स है वो भी मसल है, हाँ, राइट, वो भी मसल ही है ना। मसल है, हाँ, तो जब आप एक लिमिट पार कर जाओगे ना, ग्रोथ 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 के नाम पे, योर ऑर्गन्स विल आल्सो स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रोइंग, हाँ, और वहां पे उनकी एफिशिएंसीज कम होने लग जाएगी। राइट, जैसे वो रिच पियाना के केस में हुआ था, हिज स्कल हैड इंक्रीज बाय 1 इंचेस, 1 इंच, हाँ, ठीक है, तो उसका हार्ट बड़ा हो गया होगा। डेलास मैककावर, उसके ऑर्गन्स भी ग्रो कर गए थे अंदर से। तो व्हेन यू अब्यूज योरसेल्फ, व्हेन यू गो मच 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 बियॉन्ड द लिमिट ऑफ हाँ, एन अप्रिशिएबल डोज, कि भाई यहाँ तक लेके रुकना चाहिए आदमी ने, हाँ, तो आपके बॉडी में हर चीज बड़ी होगी। अब अगर आप ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे तो आपके इंटेस्टाइन्स भी ग्रो करेंगे। ओके, एक केस ये होता है हाँ, जहां पे बबल गट आने, आपका बेली बटन रिवर्स बाहर आ जाना, हाँ, ये भी दीज आर ऑल अब्यूज ऑफ पेप्टाइड्स। वन, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि उनका स्टेरॉइड अब्यूज नहीं हुआ है, बट उनका जो फूड पोर्शनिंग किया गया है ना पूरे दिन के लिए, वो गलत है। मे बी दे आर ईटिंग 6 मील्स, मगर वो एक मील में समझो 400 ग्राम चावल खा रहा है, 300 ग्राम चिकन खा रहा है, 100-150 ग्राम सब्जी, 100-150 ग्राम फ्रूट्स खा रहा है, तो अ केजी ऑफ मील एट अ टाइम, तो उस वजह से उसके गट पे लोड आएगा। लोड आएगा,
और वो बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। तो ब्लोटिंग बोलो वो भी हो गया। या बबल गट बोलो या हम्म, प्रेग्नेंट बेली बोलो, आप जो बोलना है बोल सकते हो। हाँ, उसका सबसे सही तरीका ये है कि भाई मैं मील्स की क्वांटिटीज बढ़ा दूं और पोर्शन को छोटा कर दूं, ताकि मेरे पेट पे लोड ना आए और मैं उसको इजीली खा सकूं। राइट। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हीलिंग, अगर हीलिंग की बात करें, पहले तो डेका लिया जाता था। अगर ऑफ सीजन हैवी वेट उठाना है किसी को तो लोग बोलते थे इट एक्ट्स एज अ हीलिंग एजेंट। अब उसके साथ देयर आर 2 मोर पेप्टाइड्स व्हिच आर इमर्जिंग इनटू द इंडस्ट्री, जो जिन्हें बोला जाता है बीपीसी एंड टीबी 500। सो वो कौन से केसेस में अभी यूज हो रहे हैं सबसे ज्यादा? अगर खुल के बात की जाए हम्म, तो हर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को जो सीरियस ट्रेनिंग कर रहा है, इररिस्पेक्टिव उसको इंजरी है या नहीं है, उसने पूरा साल बीपीसी 157 यूज करना चाहिए। ओके, आई एम सेइंग दिस एज अ कोच। सो इट वर्क्स दैट वंडर्स। यस, बीपीसी सिंपल है, बॉडी प्रोटेक्शन कंपाउंड। कंपाउंड। अब जो उसके अंदर के अमीनोज के जो चेन्स है, हम्म, उतना साइंटिफिक साइड में नहीं जाते हैं। हम्म, इफ इट इज यूज्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीबी 500, हम्म, इट डज वंडर। ओके, कई केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे बोन्स में हेयर लाइन फ्रैक्चर्स है। हेयर लाइन, अगर हड्डी का बुक्का हो गया है तो तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर सर्जरी है। बट a very minute hairline fracture in bones can also heal by using BPC 157 and TB 500. Your ligament tear minor, अब फट के पूरा अलग हो गया है तो Right. कुछ नहीं कर सकते हो। Your minor muscle tear, BPC works. What BPC does is आपका रिकवरी बहुत फास्ट कर देगा, तो आपके अगले दिन के वर्कआउट में यू हैव फुल स्ट्रेंथ, योर मसल्स आर रेडी। Okay. अगर आप आज टायर्ड हो Hmm. और कल मैं आपको बोलूं कि वापस से आपको उतनी मेहनत करनी है, तो शायद आप नहीं नहीं कर पाओगे। तो बीपीसी आपका रिकवरी बहुत स्पीड से बढ़ा देता है Hmm. और आप इट प्रिवेंट्स ऑल सॉर्ट ऑफ इंजरीज। Okay. जे कटलर एंड फिलीत, Okay. prime examples, they use BPC 157 throughout the year, Okay. which Philippe has mentioned in one of his interviews. He Hmm. uses BPC 157 365 days a year. Okay. And it is like अगर कोई एक अच्छा बॉडी बिल्डर कमा भी रहा है तो उसके लिए वो एक अफोर्डेबल रेंज हो अगर जाता है। अफोर्डेबल है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पीसीटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी फिलहाल इंडस्ट्री में। सो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं ना, सब पीसीटी नहीं करते, वो डरते हैं इससे मसल लॉस हो गया तो बेसिकली दे आर ऑन ओसीटी, ऑन साइकिल थेरेपी और टीआरटी वो कंटिन्यू करते हैं। सो पीसीटी करना कितना ज़रूरी है? पहले तो पीसीटी पिक्चर में आता भी है या नहीं वो देखना है। ओके। आज से 10 साल पहले कि आज से कुछ साल पहले तक के भी अगर हम बात करेंगे तो लोगों में एक वहम था, जो लोकल जितने ट्रेनर्स और कोचेस थे, दे यूज्ड टू कॉल इट वॉश आउट। हाँ। वॉश आउट जबकि वॉश आउट कुछ नहीं होता कुछ है। नहीं होता है। आम जुबान में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं हम्म, तो योर बॉडी हैज बीन क्रिएटेड इन सच अ फैशन, हम्म, एनीथिंग दैट गोज इनसाइड वैनिशेस ऑफ, ओके। इट गोज आउट। हम्म, सिंपल एग्जाम्पल, आज आपका सर दर्द करता है, हम्म, आपने एक पैरासिटामोल खाया, हम्म, आपने पेन किलर खाया, हम्म, तो आपको लाइफ टाइम सर दर्द नहीं देगा क्या? हम्म, हाँ, दे सकता दे है, सकता है। क्योंकि ये पेन किलर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। राइट। आज आपने सुबह में ब्रेकफास्ट किया, राइट। फिर आप लंच क्यों कर रहे हो? आपने तो पेट भर लिया, फिर आप डिनर क्यों कर रहे हो? आपने थोड़ी देर पहले पानी पिया, फिर आप वापस पानी क्यों पियोगे? तो आपके बॉडी में हर वो चीज जो जा रही है, इट कैन मीन एनी फॉर्म, whether you eat it, whether you drink it, whether you swallow it, whether you inhale it through your nose, or whether you apply it in a form of balm on your skin, जो हम लोग ऑइंटमेंट जेल्स वगैरह यूज करते हैं। एनीथिंग दैट गोज इनसाइड योर बॉडी हैज अ लाइफ साइकिल। वो उतने वक्त के लिए आपके बॉडी में रहेगी और उसके बाद में वो नेचुरली डिसअपियर हो जाएगी। सो इट्स नॉट जस्ट विथ योर फूड, इट्स विथ योर मेडिसिन एंड एनाबॉलिक कंपाउंड्स एज वेल। तो स्टेरॉइड्स भी जब आपके बॉडी में जा रहा है, आपने अगर यूज करना छोड़ दिया है, तो वो कुछ वक्त के बाद आपके बॉडी में से निकलना चालू हो जाएगा, जिसको आम जुबान में हम हाफ लाइफ साइकिल बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 200 mg टेस्टोस्टेरोन डे 1 पे अगर यूज किया है, अगर उसका हाफ लाइफ 5 डेज है, एनी टेस्टोस्टेरोन, अगर तो 5th डे पे 7th डे पे वो 200 विल बिकम 100, अनदर 7 डे 50, अनदर 7 डे 25, अनदर 7 डे 12.5। सो इट स्लोली ग्रेजुअली ओवर इट्स हाफ लाइफ इट विल कीप रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग। तो आपके बॉडी से तो वो वैसे भी निकल जाएगा,
तो आप बॉडी में से निकाल क्या रहे हो फिर वॉश आउट के नाम पे? तो वॉश आउट कुछ नहीं होता था. अब बात आती है पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी. द मोमेंट इट इज पोस्ट साइकिल, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप योर साइकिल. अंडरस्टूड. अगर आप साइकिल चालू रख के करते हो तो इट इज नॉट पीसीटी, इट इज पोस्ट साइकिल थेरेपी. The best example for post-cycle therapy is a body massage. You never call it post-cycle treatment. आपको कोई बीमारी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, थेरेपी नहीं करता है. कोई बंदा मेंटली किसी चीज का शिकार है, साइकाट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकाट्रिस्ट ट्रीटमेंट नहीं करता है, थेरेपी करता है. बिकॉज साइकाट्रिस्ट डज नॉट नो 100% काम करेगा कि नहीं. जो मैं थेरेपी कर रहा हूँ, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसको पता है कि मैं ये दवा दूंगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कल इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, एंड हेंस इट इज कॉल्ड पोस्ट साइकिल थेरेपी, नॉट ट्रीटमेंट. वन थेरेपी का बेस्ट एग्जांपल है बॉडी मसाज. आपके बदन में दर्द है, आपने मसाज लिया, दर्द गया नहीं गया वो बाद की बात है. अगर दर्द गया तो ठीक, और अगर दर्द नहीं था उसके बावजूद जाके मसाज ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो लोगों ने इसी वजह से, क्योंकि ये थेरेपी है, इसके नाम पे कई लोगों ने गंद मचा रखी है. एकदम थेरेटिकल कर दिया है. क्लोमिफिन ले ले, टेमोक्सिफिन ले ले, HCG के 4 हफ्ते शॉट मार ले, 5000 IU 2000 IU कर ले. यही चल रहा है ना इंडस्ट्री में. जैसी कोई बंदा साइकिल बंद करता है, उसका कोच उसको यही बोलेगा, अभी तू HCG मार, टेमोक्सिफिन ले, क्लोमिफिन ले. ठीक है, क्योंकि ये थेरेपी है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो कोचेस आर सेफ. बराबर. कोचेस आर सेफ. But my point is, even if you want to do a therapy, now it is related to your hormones. When you stop your cycle completely, wait for 4 to 6 weeks. See how your body is responding and recovering on its own. Now, after 6 weeks, repeat all your blood work. Right. आपने साइकिल रन किया, साइकिल बंद किया, 6 हफ्ते के बाद आप सारा ब्लड टेस्ट दोबारा करो. उस ब्लड टेस्ट में अगर कोई चीज ऊपर नीचे हुई है, then you go for a PCT. Now you call it PCT or you call it post-cycle treatment, because you have to actually correct it now. Right. So your blood work is mandatory. Without doing your blood work, you should not do anything. Suppose अगर आपका blood work एकदम normal आता है, I have a trainer in my gym. He's been using cycle from last 7 years. Okay. And he's blessed. ठीक है, सचिन प्रधान. सचिन प्रधान का पिछले 7 सालों में कोई हार्मोन साइकिल यूज करने के बाद में फ्लक्चुएट नहीं होता है, ड्रॉप ही नहीं होता है. वो ऑटोमेटिकली रिकवर करके कम्स वेल विद इन द रेंज. सो ही डजंट नीड एनी पीसीटी. सो इन द लास्ट 7 years he has not used anything. Okay. So why do a theoretical PCT? Get your blood work done. If you need something, do a PCT. Achha. One. Suppose if you don't want to stop the cycle, with the fear you lose muscle, then you forget PCT, then you forget your hormones, then become very professional, then you come on to bridging cruising concept. Right. ठीक है. When you do a cycle, when you stop your cycle, get to a minimal dose. 1 shot a week, 1 shot, 2 shot in 15 days, 10 days, kind of. And then you do it for another couple of months, and then you get back to cycle. That is one way. But if you see any changes inside your body midway, if you're doing some blood work, then you can do some treatment. You can use HCG or whatever, FSH, LH का अगर तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है, तो अगर GnRH वगैरह यूज कर रहे हो, तो तुम वहां पे HMG यूज करना है, GnRH यूज करना है, वो तुम तभी डिसाइड कर सकते हो साइकिल पे रहते हुए. और अब अगर कोई बंदा साइकिल भी नहीं कर रहा है, उसका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो गया है, क्योंकि आज से 1 जनरेशन पहले भी अगर हम जाएंगे, सिर्फ 1 जनरेशन पहले, तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे डिस्कसिंग इरेक्शन, डिस्कसिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, discussing sex, discussing anything related to body was a taboo. I have not seen my parents discussing so openly about the menstruation cycle or the erection. But आज की डेट में हमारी जनरेशन में ये हम एकदम ओपनली डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी आदमी का टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो गया या इरेक्शन चला गया है, तो दे यूज्ड टू टेक इट एज नेचर्स
वर्किंग कि बॉस ये लॉ ही ऐसा है, एक एज के बाद में होता है. बट today's time everything is open, knowledge is also open, treatment is available, so people switch to TRT. तो अब टीआरटी भी कब करना है? अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा ड्रॉप है, आपको उसको रेंज में मेंटेन करना है, देन यू गो फॉर टीआरटी. देयर आर पीपल हु आर 50 years of age but they are maintaining 800 700 units of testosterone. They don't need TRT. They don't need TRT. तो टीआरटी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हुआ है, आपको उसको मेंटेन करना है, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, देन यू गो फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अंडरस्टूड. और पीसीटी की जैसे बात करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स हमारे इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे हैं, एंड यू हैव आल्सो कम अप विद अ सप्लीमेंट यू हैड शेयर्ड विद फ्यूजन एक्स. या राइट. सो टेल अस समथिंग कि क्यों हो रहा है. सबसे पहली चीज तो ये है कि इरेक्शन इज नॉट जस्ट ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन. Learn the fact, erection is a function of so many elements combined together. Primary will always be testosterone, DHT, cortisol, estrogen, the hormone side of your body. Second, how stressed you are, whether you had food or not, where you're having sex, who you're having sex with, what was your body temperature, whether you were tired throughout the day, what was your room temperature, blah 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 blah. मिसाल की तौर पे आप सेक्स कर रहे हो और अचानक से किसी ने दरवाजा खोल दिया, जो आदमी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो या आपसे बहुत सीनियर है, आपका इरेक्शन चला जाएगा आउट ऑफ फियर. वन, आप बेडरूम में सेक्स कर रहे हो या किचन में सेक्स कर रहे हो, ये भी डिसाइड करेगा कि आपका इरेक्शन कैसा है. तो इरेक्शन को सीधा सीधा ले जाके टेस्टोस्टेरोन पे थोप देना, ये बिल्कुल गलत बात है. कई लोगों को साइकोलॉजिकल रीजंस के वजह से इरेक्शन नहीं होता है. Their body is functioning well, absolutely well, but they have different thoughts, they have different fantasies which they are not able to achieve, so they might end up losing erection. And there are cases in bodybuilding where they have abused themselves with steroids above and beyond the manageable limits, and they ended up with erectile dysfunctioning. Okay. तो अब ये पॉइंट क्या है, आप आपके हार्मोन्स को साइकिल पे रहते हुए मेंटेन कीजिए कुछ हद तक के. अब होता है ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए अगर किसी को फोर्स भी किया जाए तो वो साइकिल के स्टार्टिंग में तो कर लेगा, फिर 2-3 साल तक नहीं करेगा. तो अब 4 महीने 5 महीने 6 महीने में दोबारा टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि साइकिल पे रहते हुए इसको करेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. अगर साइकिल पे रह के किया जा सकता है तो आप उन हार्मोन्स को साइकिल पे रह के करेक्ट करो. कुछ हार्मोन्स ऐसे जो साइकिल पे रह के करेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो आप साइकिल बंद करके उनको करेक्ट करो. इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग has become very common these days. People are relating it directly to bodybuilding, but ऐसा नहीं है. It is also because of the sedentary lifestyle that people are living. Right. Secondly, there is a very common rumor in the industry. Bodybuilders को बच्चे नहीं होते हैं because they lose erection, they lose that power to father a child. I would tell you, if you go to any fertility center, you go to any random fertility center, 99% of the men sitting there are non-anabolic users. हाँ, ये भी सही है. तो फिर क्यों? True, हाँ. क्यों? It's about their lifestyle. हाँ, तो लोगों ने खाली बस वो बोलते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे. हाँ. जिनकी बनी ही नहीं. आज सप्लीमेंट को स्टेरॉइड वो लोग बोल रहे हैं जिनकी औकात ही नहीं है सप्लीमेंट खरीदने की. बराबर. जिसके पास पैसा है, नॉलेज है, वो सप्लीमेंट खा रहा है. फॉर हिम वे प्रोटीन इज वे प्रोटीन. अब जिसकी औकात ही नहीं है सप्लीमेंट खरीदने की, वो सीधा बोल देगा वे प्रोटीन इज स्टेरॉइड. वे प्रोटीन जैसा सप्लीमेंट, खाना खा रहे हो वैसे सप्लीमेंट खा रहे हो. तो लोगों ने घुमा के बॉडी बिल्डिंग को बदनाम करने की कोशिश किया है. तो these are the problems which even a common man faces. And erectile dysfunction, erection is so manly कि अगर किसी का इरेक्शन जाएगा तो वो कभी आके बोलेगा नहीं. हाँ, ये बराबर. बॉडी बिल्डिंग में इरेक्शन उन लोगों का जा रहा है जो एम्प और टर्मीन से अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं. Somebody who's using amp and termine and have just forgotten the limits, have no control over their usage, they are facing erectile dysfunctioning. I can very confidently tell this here
कि वही लोग हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रहा है, तो उसको बॉडी बिल्डिंग पे इल्जाम नहीं लगाया जाए, क्योंकि एम्फोटर्मिन ना ही सप्लीमेंट्स है, ना ही स्टेरॉइड्स है और ना ही पेप्टाइड्स है। वो एक नशा है, वो एक ड्रग है जो लोगों ने बॉडी बिल्डिंग में घुसेड़ दिया है। Okay, now let's discuss about the dark side of bodybuilding. सर बॉडी बिल्डिंग 2026 में अभी जैसे सोशल मीडिया इतना बूम हो रहा है, सो काफ़ी डेथ्स भी अभी रिपोर्ट हो रहे हैं बॉडी बिल्डर्स के, कि और लोग ना हमेशा स्टेरॉइड्स पे ब्लेम डालते हैं। कोई भी बॉडी बिल्डर की देते हुए पहले स्टेरॉइड्स को पकड़ो। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इज इट स्टेरॉइड्स, इज इट पेप्टाइड्स, साइकोएक्टिव ड्रग्स है, क्या फिर लूप डायरेटिक्स? बहुत सारी चीज पे आते हैं। नंबर 1, आज बॉलीवुड में एक एक्टर की डेथ हुई, आपको पता है? नहीं। नहीं पता है। Okay. आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, हाँ। उसके बाजू वाली बिल्डिंग में किसी की डेथ हुई, आपको पता है? नहीं। 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 तो हमको न्यूज वही आएगी हम जिन चीजों से एसोसिएटेड है। सपोज इफ समबडी डाइज इन माय फैमिली, हाँ। मेरे खानदान में अगर किसी का इंतकाल होता है, हाँ। वो खबर आपको नहीं आएगी ना, नहीं वो आएगी। खबर मेरे को आएगी, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपके खानदान में कुछ होगा तो आपको आएगी, मुझे नहीं आएगी। मेरे बिल्डिंग में कोई मरेगा तो मुझे पता चलेगा, बाजू वाली बिल्डिंग वाले को नहीं पता चलेगा। तो सेम गोज विद द इंडस्ट्री, सेम गोज विद द इंडस्ट्री। अगर आज कोई क्रिकेटर की डेथ होती है तो वो खबर हमको नहीं आएगी, हमको किन लोगों की खबर आएगी? जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। तो अब अगर कोई बॉडी बिल्डर मरेगा तो बॉडी बिल्डर की खबर बॉडी बिल्डिंग डोमेन में ही घूमेगी। अब लोग उसको बोलेंगे ये स्टेरॉइड की वजह से मर गया। अब उसको मरना ही था। मौत एक ऐसा एलिमेंट है जो खुदा ने अपने हाथ में रखा है, दस्ते कुदरत में रखा है। कब मरोगे, कैसे मरोगे, कितने बजे मरोगे, कहाँ मरोगे, किस वजह से मरोगे, ये किसी इंसान को नहीं पता है। तो मरना तय है। डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट हैज टू कम। तो उसका इल्जाम बॉडी बिल्डिंग पे थोपना बेवकूफी है। अब बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई मर रहा है तो उसका वजह ये है, कोई, हाँ, अगर विच इज हार्डली 0.1%, नॉट इवन 1%, they are abusing themselves with an intention to grow. There is no harm in growing, but take care of your organs. You want to become big, go get big, no problem. But keep a check on your hormones, keep a check on your organs, keep a check on your blood markers, जो लोग नहीं करते। नंबर 3, आज तक इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आज तक स्टेरॉइड्स के वजह से और पेप्टाइड्स के वजह से पूरी दुनिया में किसी की भी मौत नहीं हुई है। किसी की भी नहीं हुई है। कोई एक नाम बता दो जो स्टेरॉइड्स के वजह से इंस्टेंट डेथ मरा हो। इंस्टेंट डेथ की बात हो रही है, इंस्टेंट डेथ, बिकॉज योर बॉडी कीप्स स्पीकिंग टू यू, योर बॉडी गिव्स यू सिग्नल। इट इज यू हु हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी बॉडी क्या बोल रही है। तो अगर स्टेरॉइड के वजह से कोई डैमेज होता भी होगा बॉडी में, अगर होता होगा, तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, एंड यू कैन करेक्ट इट। इंस्टेंट डेथ एंटायर हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग अगर हुई है तो वो 2 या 3 चीजों की वजह से हुई है। एम्पियाटर्मिन, विच इज अ ड्रग, नॉट स्टेरॉइड, इंसुलिन एंड डायूरेटिक्स। इंसुलिन का फंडा सिंपल है, अगर इंसुलिन का डोज ज्यादा हो गया और उसने उस टाइम पे कार्ब्स लोड नहीं किया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन, उस हिसाब से आपको कार्ब्स लोड करना है। अगर आपका कार्ब लोडिंग गेम फेल हो गया, योर बॉडी विल एंटर इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के बाद में योर ऑर्गन्स विल स्टॉप वर्किंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एट द सेम टाइम, एंड जुप अ पर्सन डाइज। तो यहाँ पे स्टेरॉइड तो आया ही नहीं। इट वाज द रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग टाइमिंग फॉर द कार्ब लोडिंग, बिकॉज ओवरडोज ऑफ इंसुलिन। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स की जरूरत अगर नहीं है और डायूरेटिक्स आप उसके बावजूद भी लिए जा रहे हो, तो मसल क्रैम्प करेगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके ऑर्गन्स भी तो मसल ही है। तो अगर ऑर्गन क्रैम्प कर गया तो ऑर्गन फेल हो जाएगा और आप निकल लोगे। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, ग्रीन रूम में अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें कोचेस की भी गलती नहीं होती, एथलीट की भी गलती नहीं होती, डॉक्टर की गलती हो जाती है। अगर किसी बंदे ने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज किया है, उसने पानी निकाला है बॉडी से, बट इट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तो उसके बॉडी में पोटेशियम मेंटेन्ड है, बट अब वो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया है। डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया है। तो सिंपल तरीका उसको होश में लाने का क्या है भाई? उसको पानी पिला दो, शक्कर नमक का पानी पिला दो, नींबू पानी पिला दो, उसको नॉर्मल पानी पिला के लोटा भर 1 लीटर उसको होश में ले आओ। बट अब
द मोमेंट यू कॉल डॉक्टर, वो उसको आईवी पे डाल देगा। आईवी पे डालेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स में उसको क्या देगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम। ठीक है, उसके बॉडी में पोटेशियम ऑलरेडी भरा पड़ा है, अब वो होश में नहीं है और डॉक्टर ने उसको एक्स्ट्रा पोटेशियम दे दिया, ओवरडोज ऑफ पोटेशियम, हार्ट अटैक। तो अब जिम्मेदार कौन हुआ? बॉडी बिल्डिंग या कोच या एथलीट? तीनों भी नहीं हुए, डॉक्टर। बट डॉक्टर को भी 100% ब्लेम नहीं किया जा सकता ना, उसको नहीं पता इसने क्या किया है। तो इसीलिए मेरी सारे एथलीट से एक एडवाइस है, आप आपके प्रोटोकॉल्स को सीक्रेट रखो, नो हार्म, मगर आपका प्रोटोकॉल एक बंदा ऐसा हो जो जानता हो आप क्या कर रहे हो। वो आपके फैमिली मेंबर्स में से हो या आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड हो या आपका कोच हो, जो आपके साथ में है उधर पे। इफ समथिंग हैपेंस टू यू, ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड द अदर पीपल अराउंड, करना क्या है, इसने क्या लिया है। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सर एक बॉडी बिल्डर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेता है, हेल्थ के रिस्क लेता है, बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगाता है, सेक्रीफाइसेस करता है टू एक्चुअली बी एट द टॉप। बट काफ़ी शोज में ना सर पार्शलिटी भी होती है बेसिकली। सो डज हैविंग अ रेप्यूटेटेड कोच, मैंने देखा है एक्चुअली, डज हैविंग अ रेप्यूटेटेड कोच या फिर एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी है, और कितना एक पुश कर सकता है एक एथलीट? देखो, little bit of biasness exists everywhere in the world. Exists everywhere in the world. That biasness can come from the organizer. Maybe the coach is known to him, or maybe the athlete is directly known to him. Or the biasness come from the judging panel also. Again, the same. If the coach is known to the judges or the athlete is directly known to the judges. बॉडी बिल्डिंग में सबसे वियर्डेस्ट पार्ट ये है, यू आर नॉट स्कोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजेस। आई हैव बीन टू सो मेनी शोज, वहां पे डायरेक्ट रैंक्स दे दिया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। 10 लोग आ गए, मैंने 10 लोगों को देखा, 10 लोगों ने साथ साथ पोज किए, बट मैंने उनके I haven't scored them on each pose. I've just given them the rank, first, second, third, 10th, 9th, 8th, kind of. ठीक है, तो उस वक्त वो जज को क्या पसंद आया है, उसने रैंक दे दिया, आप उस पर फाइट नहीं कर सकते। अब उस वक्त वो बॉडी वैसे अच्छी दिख रही थी इसलिए उसको रैंक मिला है, या वो जज का फेवरेट था इसलिए रैंक मिला है, या जज के साथ में सेटिंग थी इसलिए रैंक मिला है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ा डिबेट है, कोई बोल नहीं सकता। अच्छा। हाँ, 19-20 में फर्क अगर हो जाए तो हो सकता है कि देखने वालों की गलतफहमी हो सकती है। एथलीट को खुद को अपनी बॉडी तो नहीं दिखती है स्टेज के ऊपर, वो बाजू वाले को भले ही देख सकता है। हाँ। तो एथलीट में भी ये गुमान आ सकता है कि मेरे साथ में चीटिंग हुआ है, ऑडियंस में भी ये हो सकता है कि चीटिंग हुआ है, बट जो जजिंग पैनल एकदम करीब बैठा है, हो सकता है कि उन लोगों ने वो चीज देखी हो जो हमने नहीं देखी है। ठीक है, तो वहां पे चीटिंग हुआ है, ये पॉइंट बहुत बड़ा डिबेट बन सकता है। अगर देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, 19-20 पे कोई हारा है या जीत रहा है, बट अगर कोई ऐसा शो है, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पे पानी से भरा पड़ा है एथलीट का बैक, और एक क्रिस्प कंडीशन में एथलीट बाजू में खड़ा है, आप वो क्रिस्प कंडीशन वाले एथलीट को हरा देते हो, वो लोअर बैक पे जिस बंदे को पानी भरा है आप उसको ओवरऑल शो जिता देते हो, तो ये चीटिंग है। ये चीटिंग है। अब वो चीटिंग ऑर्गेनाइजर ने किया है या जज ने किया है वो हमको नहीं पता, बट चीटिंग हुआ है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे शोज में होता है, उसे एथलीट को हार नहीं माननी चाहिए। मतलब शोज के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है नहीं, जजेस के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है नहीं। हाँ, बट ये भी नहीं है कि हर शो में सेटिंग होती है या हर शो में चीटिंग होती है। तुम अपना बेस्ट दो, और कई बार ऐसा होता है कि यू कम इन द बेस्ट फिजिक ऑफ योर्स, बट लाइनअप और तगड़ा हो गया, और तुम हार गए। कई बार ऐसा होता है कि तुमने अपना 100% नहीं दिया है, तुम ठीक ठाक कंडीशनिंग लेकर आए हो, बट लाइनअप में लोग ही नहीं आए, और तुम जीत गए। ऐसा लोगों ने प्रो कार्ड भी जीता है, ऐसे लोगों ने प्रो कार्ड भी जीता है, स्टेज पे आए, पोज किया और डायरेक्ट नेशनल एंथम प्ले हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। के स्टेज पे आए, पोज किया और सीधा नेशनल एंथम, क्योंकि सेकंड कॉम्पिटिटर ही नहीं था। ग्रुप बनना तो छोड़ो, तुम्हारे ग्रुप में एथलीट्स नहीं थे, 5 जन ही थे। हाँ, ऐसे भी हुआ है, 3 लोग स्टेज पे आए, तीनों ने मेडल जीत गए, उसमें से उन तीनों में ये बंदा अच्छा था, ये प्रो कार्ड जीत गया।
काफी टाइम पे ऐसे भी हो गया कि एक शो पे 2 प्रो कार्ड भी दे दिए, हाँ ये भी हो गया, राइट। बट और एक चीज है, स्टेज पे आने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एटलीस्ट वन क्राइटेरियन के वो एथलीट तो दिखे। कई बार ऑर्गेनाइजर क्या करता है कि बस मुझे पैसा मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे क्या जाता है, भद्दे भद्दे मोटे मोटे आड़े टेढ़े लोग स्टेज पे चढ़ते हैं। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग देम, बट इट इज अ स्पोर्ट। अगर मुझे बैट पकड़ना नहीं आता है तो मैं क्रिकेट ग्राउंड पे जाके अब बेवकूफी नहीं करूंगा, मैं अपना मजाक नहीं बनाऊंगा। तो स्टेज पे चढ़ने के पहले ही एक स्क्रीनिंग होना चाहिए कि भाई ये तो एथलीट दिखता ही नहीं है, ये तो कभी जिम ही नहीं किया, इसका फैट परसेंटेज 15-20 के ऊपर है। Suppose if somebody is 25% body fat, he is not an athlete. We must stop them. वो एक गंदी चीज है जो आज बहुत सारे शोज में होती है, और सारे शोज में होती है। लोकल में भी हो रही है, नेशनल्स में भी हो रही है, इंटरनेशनल में भी हो रही है, और बाद में मजाक बन जाता है, मीम मटेरियल बन जाता है, देसी जिम मीम को मिल जाता है दालो। वो भी है, राइट। एंड वन मोर थिंग, मुझे आपको अपने गेस्ट को बताना था कि सर यू हैव आल्सो रिटन अ बुक ऑफ योर्स। Yeah, so tell us something about that. I have written 3 books, The Nutrition Blueprint, The Scientific Principles of Strength Training, and the third book I'm still writing, not completed. It is The Anabolic Blueprint. The Nutrition Blueprint is available on my website, on Amazon, and couple of online platforms. The Nutrition Blueprint is a book. I'm not making loss for any institute, बट अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो कहीं पे 50-60-70 हज़ार रुपया भर के ट्रेनर का कोर्स या न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं कर सकता है, न्यूट्रिशन का कोर्स स्पेसिफिकली, तो वो 1,500 रुपए की बुक खरीद कर अगर उसको थरली ईमानदारी से दिल से उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ेगा, वो खुद डाइट बनाना और लिखना सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने अपने करियर में जो फॉर्मूलाज यूज किया है, जो मेथड यूज किया है, जो थंब रूल यूज किया है लोगों की डाइट लिखने के लिए, मैंने उस बुक के अंदर सब कुछ डाल दिया है। सो इफ समबडी वांट्स टू लर्न हाउ टू राइट डाइट, he wants to learn about nutrition, supplements, etc., you can read the Nutrition Blueprint on my website, iqbalsayyedhumblebeast.com. Okay. The second book is only available on website. It is just in the soft format. It is about the workout. The third book which I'm writing, I've already taken more than a year to complete it, but it is still not complete. It will be a complete, whatever you call it, encyclopedia or Bible or whatever you want to. It is all about steroids, SARMs, peptides, supplements, blood work, pros and cons, side effects, how to correct them, women can use steroids or not, what steroids women can use, how to administer, what are the laws, what are the advanced uses of it, everything. But I'll take another 5 to 6 months for that book to complete. Until then there's nutrition and workout. At the moment, the Nutrition Blueprint for nutrition, the scientific principles for workout. Okay, sure sir. मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में सर सारे लिंक्स आप मुझे भेज देना, मैं लगा दूंगा। So we can actually make sure हम लोग ये देख सकते हैं कि बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Yes, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी करो, knowledge is very important. Right. But again, knowledge has to come with assimilation. And knowledge without assimilation is a disaster. Tomato is a fruit, but you don't put it in a fruit salad. Right. Google teaches you how to make bomb, but your wisdom tells you not to bomb. Right. or not to make a bomb. Right. ठीक है. So knowledge होनी चाहिए, but इल्म होना चाहिए, but इल्म का अमल सही तरीके से होना चाहिए. So guys, our interview series with Iqbal sir has finally come to an end. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, then do like, comment, share and be sure to subscribe. Thank you.